And after we do exemptions and registrations, our all 10 chapters, yes, that was all the practical things in GST. So we are coming to chapter number 8, composition scheme. Please guys, please come to chapter number 8, composition scheme. Yeah, chapter number 8, composition scheme. Chapter number 8, composition scheme. Hanji, before I start, uh, do you have any queries or doubts regarding the last chapter? Guys, if you have any queries or doubts regarding the last chapter, koi doubt, mashanka, koi confusion, or should I start without wasting any more time? सर अभी तो कोई डाउट नहीं है चलिए great, thank you जी, thank you. So guys, I'm going to start today with the composition scheme. Now let me just give you a brief outline. We have to cover section 10 today. Yes guys, this section 10 we have to cover today. The class is approx of 2 hours and let's keep it till for 2 hours only, and till chapter number 10 that is our practical portion. As I told you, baki rest is dead theory, which won't take much time. So we are on the right track, right speed, optimum time I've given you for the last chapters to practice. You could fill up, you start practicing the question bank, study material questions. I am also trying to prepare a new question bank for next 60 days. You have practice from that also. So guys, first of all, let me just guide you regarding the composition scheme. Let me guide you regarding the composition scheme. I have to restart my writing pad. Again, I'm restarting. Let's see. It is visible. Yes, it is visible. Composition scheme. Guys, GST is a very simplified system of indirect taxes. GST is a simplified system of indirect taxes. Now, instead of the composition scheme, let's talk about the normal scheme. What is the normal scheme? Then we understand the composition scheme. First, let's understand the normal scheme. What do you mean by the normal scheme? And then we'll understand composition scheme. Guys, in the normal scheme, there is a supplier and there is a recipient. There is a recipient. Supplier supplies. Yes, my dear friend, supplier supplies goods oblique services. Supplier supplies goods oblique services. है ना? And the recipient makes the payment to the supplier. Now supplier gets registered. Obviously he is registered, then only he has to levy GST. He is registered, then he can levy GST, and the payment can also be received with GST if he is registered. Then he deposits the GST. That is called output tax. That is called output tax. I hope everything is making sense to you. From that output tax, he reduces input tax credit. He reduces input tax credit, and then balance amount is deposited to government. Deposited to government. So he deposits the GST, or what should I say? This is output tax or liability of GST. I can call it liability of GST. Instead of deposit, let's make it liability of GST. Liability of GST. He takes the ITC and deposits the balance. So one procedure is this. He levies, yes, he collects, he deposits. In fact, can I say before depositing claims ITC, claims input tax credit, and then he deposits GST. Deposits GST. He levies, collects, claims, and deposit GST. Yes, my dear friends, he deposits GST. Then he has to maintain accounts also. Yes, guys, he has to maintain accounts also. Records as per the GST Act, he has to maintain records. And he has to, does he deposit taxes quarterly or monthly?
A normal person, guys, he deposit taxes monthly. Every month he has to deposit the GST. So every month he has to go online, go and deposit and file GST returns. These GST returns are again monthly, in some cases quarterly. Some cases quarterly. So do you not think it is a high compliance thing? यार ये बहुत ज़्यादा compliance हो जाता है. पहले तो GST लगाओ भैया, बिल में लगाओ, फिर भैया उसको कलेक्ट करो, फिर भैया ITC क्लेम करो, फिर बहन डिपॉजिट जमा करवाए, है ना, फिर भैया अकाउंट्स मेंटेन करो, और उसके बाद GST की रिटर्न्स जो कई जगह मंथली हैं, कई जगह क्वार्टरली हैं, करें. इसके लिए आपको हाई कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग हो रहा है. हाँ, अरे ये डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ एक तरीके से. तो एक तो हाई कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, हाई कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, एक तो अकाउंटिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गई, है ना. हाई प्रोसीजर्स या हाई बर्डन, हाई कंप्लाइंसेस, मोर कंप्लाइंसेस. तो कहीं ना कहीं सिरदर्द, मोर सिरदर्द और मोर हेडेक. क्या इस बात से तुम वाकिफ हो कि ये सब काम करने पड़ते हैं? अब तो क्वार्टरली कर दिया, नहीं तो हर महीने 3 रिटर्न जाती थी. और क्या हुआ है? चुस्की ले रहे हैं? अच्छा, मैंने कहा चुस्की कुछ क्या, गोले गोले बर्फ के खा रहे हो क्या? अच्छा, शौर्य सौम्य दोनों मिल गए आज. ओह गॉड, ओ गॉड, 2 देवियां इकट्ठे. शिट मैन, मेरा क्या होगा आज? हे भगवान, 2 देवियां इकट्ठे. कोई और देवी भी हैं क्या यहाँ पर हमारी? देखें जरा. आज तो बैंड बच जाएगा मेरे. काजल भी है जी, सौम्या भी. सौम्या के डीपी में भी जी बाहर निकाल रखी है इसने. हे भगवान. तमन्ना, वेरी गुड. उज्जवल, हाय राम, तू तो बेचारा आज सिंकारा ले ले बेटा तू. मेरे तो जोश आ गया अभी थोड़ा सा ना, क्लास लेने के बाद मैं भी थोड़ा टायर्ड हो गया था, तो मैंने खाना तो खाया नहीं 2 दिन से. तो मैं आई वाज ईटिंग लाइक अ हिप्पोपोटामस. जब तो भूख ज्यादा लग जाती है, तो आई एम स्टार्टिंग नाउ. आई थिंक आई शुड बी हिटिंग द जिम. मैंने सोच लिया है अब कि थोड़ा सा ना वो हो जाए. बहुत ज्यादा वेट बढ़ गया है मेरा. चलो, तो गाइस, ये बर्डन बड़ा ज्यादा है या कम है? ये चलो ये जवाब दो. बर्डन कम है, ज्यादा है? ज्यादा है. ज्यादा है. तो कहीं ना कहीं, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं एक छोटे व्यापारी के लिए लेवी करना, कलेक्ट करना, ITC लेना, डिपॉजिट करवाना, अकाउंट्स मेंटेन करना, GST रिटर्न फाइल करना बड़ा मुश्किल है. तो गवर्नमेंट क्या कहती है, आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव स्कीम है. अरे क्या ऑल्टरनेटिव स्कीम है जी हमारे लिए? आइए ऐसा करते हैं, ये नॉर्मल स्कीम है ना. मैं कंपैरिजन इसको दोबारा से इन पॉइंट्स को ना एक ऐसे अच्छा रहेगा. नॉर्मल स्कीम जो अभी मैंने बात करी, और आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाओ. ये एक ऑल्टरनेटिव तरीका है. हाँ, तो लेवी करते हैं, लेवीज पहली बात. कलेक्ट करते हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं. फिर उसके बाद क्लेम ITC करते हैं, फिर डिपॉजिट करवाते हैं, और वो डिपॉजिट मंथली होता है. फिर हाँ मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, 5वां रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, है ना. वो सारे पॉइंट्स लिख रहा हूं दोबारा से. और भैया अकाउंट्स रिकॉर्ड. छठा GST रिटर्न्स, छठा GST की रिटर्न फाइल करते हैं, जो कहीं केस में मंथली है, वो तो चैप्टर करेंगे ना जब आ जाएगा, और क्वार्टरली है. लेकिन अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आए, उन लोगों सिरदर्द समझ आ गया तो सॉल्यूशन समझ आएगा. सिरदर्द समझ आ गया तो सॉल्यूशन समझ आएगा. सॉल्यूशन क्या है? आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाओ. यस, तो जो आपका लेवी है, आपको GST लगाना ही नहीं अपनी सप्लाई पे. 5 डोर ओपन हो गए. हाँ, अगर 5 डोर ओपन ही नहीं होते
तो जीएसटी होता ही नहीं। तो जो जहां पर 5 डोर ओपन हो गए वहां जीएसटी है, वहां पर नॉर्मल स्कीम है। यहां पर लेवी नहीं करना आपको, नो लेवी, आपको जीएसटी लगाना ही नहीं है। जब लगाना नहीं है तो क्या जीएसटी कलेक्ट करोगे? बोलो। जब आपको बिल्कुल, जब बिल पे आपको लगाना ही नहीं है तो नो लेवी नो कलेक्शन। ओए होए, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, जब लेवी ही नहीं है, जब लेवी ही नहीं है, कलेक्शन करके क्या करेंगे, जब लेवी ही नहीं है, तो कलेक्शन करके क्या करेंगे। तो फिर जब, लेकिन डिपॉजिट, ओहो हाँ, क्लेम आईटीसी, भैया जब लेवी नहीं है, कलेक्शन नहीं है, तो नो आईटीसी, नो आईटीसी, बट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। हैं सर, लगाएंगे नहीं, कलेक्ट नहीं करेंगे, आईटीसी नहीं लेंगे, तो डिपॉजिट कैसे करवाएंगे? ओन पॉकेट, ओन पॉकेट से जमा करवाओ। सर ये फिर फायदा है या नुकसान है? भाई सर फायदा है नुकसान है? सर जी यहां पर जो डिपॉजिट करवाओगे रिड्यूस्ड जीएसटी रेट्स हैं, रिड्यूस जीएसटी रेट्स हैं। यहां पर जो आप कलेक्ट करोगे, जो लगाओगे, वो नॉर्मल जीएसटी रेट्स हैं। सर नॉर्मल जीएसटी रेट्स कौन कौन से? अरे मेरे लड्डू गोपाल, 5%, 12%, नॉर्मली 18% और 28%। सर यहां पर रिड्यूस जीएसटी रेट्स बताऊं, 1%, 5% और 6%। ओए, तो भाई गवर्नमेंट क्या कह दिया चाह रही है? गवर्नमेंट कह रही है भाई अगर तुम नॉर्मल स्कीम में आते हो ना तो लेवी भी करते हो, यहाँ पर कोई लेवी नहीं करना, वहां पर आप इकट्ठा भी करोगे, हम आपका बर्डन कम कर रहे हैं, इकट्ठा भी नहीं करना। वहां पर आप आईटीसी क्लेम करोगे, यहाँ पर आईटीसी क्लेम भी नहीं करना। वहां पर डिपॉजिट मंथली करना है, यहाँ पर डिपॉजिट करना है लेकिन अपनी जेब से करना है। लेकिन सर फिर फायदा क्या हुआ? यहाँ पर क्वार्टरली डिपॉजिट करना है, क्वार्टरली। ओ, तो पूरे क्वार्टर की टर्नओवर निकालो और उसका 1%, 5% या 6% अपनी जेब से दे दो। सर फिर फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ जब यहाँ पर अकाउंटेंट को 10,000 रुपये महीना, 20,000 महीना देते हैं, साल के 2-2.5 लाख रुपए जा रहे थे और सिरदर्दी भी थी, तो यहाँ पर अगर आपको 1 करोड़ की टर्नओवर पे 1%, 1 लाख ही तो हुआ। या सुनो ना, 50 लाख की टर्नओवर पे 50,000 रुपये तो हुआ। तो 50,000 रुपये देने में क्या मारा मारी है? जब आप 2-2.5 लाख रुपए अकाउंटेंट को देते हो उससे तो कमी कॉस्ट आएगी, क्योंकि ये लघु उद्योग जो है ना उन लोगों के लिए बनाई गई है कॉम्पोजिशन स्कीम, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन के लिए, स्मॉल स्केल सप्लायर्स। यस, ये वर्ड एक्ट में है नहीं लेकिन मैं यूज कर रहा हूं, स्मॉल स्केल सप्लायर्स, स्मॉल स्केल सप्लायर्स। हाँ जी, डिपॉजिट करवाना है ओन पॉकेट से, रिड्यूस जीएसटी रेट्स, रिकॉर्ड्स अकाउंट्स कोई नहीं बनाने। ओ, तो आपको अकाउंटेंट की कॉस्ट बच गई, नो रिकॉर्ड्स नो अकाउंट्स। हाँ, कुछ बिल्स रखने हैं, परचेज एंड सेल बिल्स या इनवॉइसेस, परचेज एंड सेल बिल्स, वो बिल ऑफ सप्लाई कहते हैं, वो मेंटेन करने हैं। अच्छा, तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर गाइस रिकॉर्ड्स और अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, यहाँ पर कोई रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने। लेकिन सर रिटर्न भी फाइल करनी है, हाँ जी रिटर्न फाइल करनी है, लेकिन वो फाइल करनी है ईयरली। ओ बाबा रे बाबा, यहाँ मंथली रिटर्न है, यहाँ पर जीएसटी की रिटर्न है, यस ईयरली। तो आपको क्या करना है, क्वार्टर में, साल में 4 बार तो टैक्स देना है और साल में एक रिटर्न भरनी है। यहां पर तो क्वार्टरली रिटर्न है तो 4 रिटर्न्स प्लस एक एनुअल रिटर्न, जीएसटी रिटर्न मंथली, क्वार्टरली और उसके बाद एक एनुअली भी है रिटर्न। यहां पर मात्र आपको एक जीएसटी की एक रिटर्न, यहां पर टैक्सेस देने हैं मंथली 12 बार, यहां पर टैक्सेस देने 4 बार। यहां पर किताबें बनानी है, आईटीसी लेना है, यहां पर कुछ नहीं करना। तो हर महीने अपनी जेब से दिया हो, काम खत्म।
तो लाख करोड़ की टर्नओवर पे 5% हो सकता है 5 लाख रुपए। अब 5 लाख देख के तुम्हें, अगर तुम्हें लग रहा है नहीं सर 1 करोड़ में 5 लाख का तो हमारी इनकम नहीं होती, तो फिर आप नॉर्मल स्कीम में आ जाओ, आईटीसी ले लो, कलेक्ट करो, जमा करवाओ। क्योंकि यहाँ पर आपकी सिरदर्दी क्या है, इस स्कीम में आपके ऊपर कंप्लायंस बर्डन ज्यादा है, कंप्लायंस बर्डन इज मोर, है ना। नो डायरेक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट, नो डायरेक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट है, यहां पर डायरेक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट है। तो 1%, 5%, 6% आपके ऊपर लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है नहीं है सर ये तो डायरेक्ट फाइनेंशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, इससे कंप्लायंस बर्डन, कई लोग बोलते हैं पढ़ाई ज्यादा करवा दो, चाहे चाहे हमें समझ आए ना आए, कई बोलते नहीं पढ़ाई कम करवा दो, तो वो आपको देखना है। ये ऑप्शनल स्कीम है, लो मैं बोल दिया ना, कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्शनल स्कीम है, ऑप्शनल स्कीम है ये ना, उसी टाइप की स्कीम है। अगर आपको, जिन बच्चों ने पीजीबीपी किया है मेरे साथ, ओल्ड बैच के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पीजीबी किया है, तो वहां पर 44 एडी एई और 44 एडीए याद करो, कुछ याद आया? पीजीबी जिन्होंने किया है, जिन्होंने नहीं किया कोई नहीं, इस बात को इग्नोर कर दे। सर अभी कहां करा आपने पीजीबी? पूरे सुनती नहीं ना बात, यही तो दिक्कत है। हाँ ठीक है, सुन ले। तो मैंने यही तो बोला, जिन बच्चों ने पीजीबी किया है वो बताएं। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट था ना बिजनेस इनकम निकालने का, जहां पर हमने 8% टर्नओवर का, या वो ट्रांसपोर्टर्स था, तो वो ऑल्टरनेटिव तरीका था जहां पर पीजीबीपी में ना कोई सेक्शन लगाने ना कुछ लगाने, सीधा 8% टर्नओवर। तो इसी तरीके से जैसे इनकम टैक्स में कॉम्पोजिशन स्कीम थी ना, वो शॉर्टकट वे था, ये कॉम्पोजिशन स्कीम एक शॉर्टकट तरीका है, जहां पर जीएसटी गवर्नमेंट को मिल भी जाता है, गवर्नमेंट को यह फायदा होता है जीएसटी मिल गया, क्योंकि जब आईटीसी क्लेम करते हैं तो वहां पर भी जीएसटी गवर्नमेंट का कम होता है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने आउटपुट टैक्स कम कर दिया। जैसे वही वाली बात है, 10,000 की फीस लूं, उसमें से 4,000 डिस्काउंट दे दूं, 6 चार्ज करूं, यहाँ पर डायरेक्टली गवर्नमेंट के लिए 4 दे दे, चल ना आईटीसी लेना ना डिस्काउंट देना, सीधा ही कम दे दो। आपको क्या फायदा लगा, आपको मेजरली कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या फायदा लगा सेसी के लिए, अगर आप बताना चाहें तो? कॉम्पोजिशन स्कीम में हाँ, तो बस, तो अगर आपको यही फायदा है कि कंप्लायंस बर्डन कम है, और जितना आप अकाउंटेंट को या किसी बंदे को जो आपके अकाउंट्स मेंटेन करता है उसको पैसे देते, इतने में आपका जीएसटी जमा हो जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है सर मैं तो 1 करोड़ पे कमाता ही 1-2 लाख रुपए हूँ, बेटर है मैं क्लेम कर लूँ, क्रेडिट सिरदर्दी मोल ले लूंगा, लेकिन पैसा नहीं दे सकता, तो बेटा फिर आप सिरदर्दी मोल ले लो, सीधी सी बात है। तो ये कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10 की है। सेक्शन 10। अच्छा, ये कॉम्पोजिशन स्कीम जो सेक्शन 10 की है ना, उसमें 2 कॉम्पोजिशन स्कीम है। अच्छा, कॉम्पोजिशन स्कीम 2 हैं, एक है सेक्शन 10(1) और एक है सेक्शन 10(2)(a). 10(1) में कॉम्पोजिशन स्कीम जो है दैट इज फॉर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरर्स, ट्रेडर्स एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज, खाली 3 लोगों के लिए। सर्विस सेक्टर में खाली रेस्टोरेंट, बैंक है, इंश्योरेंस है, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, इंटीरियर डेकोरेटर है, वो नहीं ले सकता। मैन्युफैक्चरर या ट्रेडर, उत्पादक या ट्रेडर में होलसेलर रिटेलर, वो होलसेलर हो या रिटेलर हो वो ले सकता है। 10(2)(a) में सर्विस प्रोवाइडर्स ले सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विसेज। अच्छा, तो ये स्कीम अभी आई थी 1-2 साल पहले। तो जो लोग जैसे गुड्स को सप्लाई करते हैं, चाहे खरीद कर या बनाकर सप्लाई करते हैं, उनको बोलेंगे मैन्युफैक्चरर, और अगर खरीद के सप्लाई करते हैं तो उनको ट्रेडर, या फिर रेस्टोरेंट की सर्विसेज, या फिर वो रेस्टोरेंट की सर्विसेज है। अच्छा, जो कॉम्पोजिशन स्कीम है यस 10(2)(a) वाली, वो डाली गई सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेप्ट रेस्टोरेंट सर्विस। इनफैक्ट 10(2)(a) में वो हैं इफ नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 10(1), जो 10(1) में कवर्ड नहीं है उनके लिए 10(2)(a) बनाई गई है, इफ नॉट कवर्ड अंडर 10(1). तो जो लोग 10(1) में कवर्ड नहीं है उनको 10(2)(a) में डाल दिया। तो नाउ सर्विस प्रोवाइडर्स एक्सेप्ट रेस्टोरेंट्स कैन क्लेम कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर 10(2)(a).
and this composition scheme is optional. आइए तो लेट्स स्टडी 10.1 फर्स्ट एंड 10.2 है. सो आज जितना हो सके 10:30 बजे तक उतना हम करेंगे. चलिए. सो गाइस प्लीज कम टू सेक्शन 10 composition scheme eligibility. 10.1 notwithstanding anything to the contrary contained in this act. अभी तक तो हमने जो नॉर्मल स्कीम में पढ़ा, आईटीसी मिलेगा, आईटीसी लेने के बाद जमा करवाना है, नॉर्मल टैक्स लगेगा, वो सब भूल जाओ. ये ऑल्टरनेटिव मैनर है. बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 93 या 94. 9394 है रिवर्स चार्ज. रिवर्स चार्ज 9394 है रिवर्स चार्ज. तो यानी कि अगर रिवर्स चार्ज पे तुम कुछ खरीदते हो, मान लीजिए कैश्यू नट्स खरीदे, कैश्यू नट्स याद करो, कैश्यू नट्स अनशेल्ड, अनशेल्ड, अनपील्ड, अनपील्ड, अनशेल्ड, अनपील्ड कैश्यू नट्स. या याद करो तुमने सर्विसेज ली हैं, तुम इंश्योरेंस एजेंट हो, इंश्योरेंस एजेंट, उसका जीएसटी किस पे आता है? इंश्योरेंस एजेंट का जीएसटी किस पे आता है? इंश्योरेंस कंपनी पे आता है. तो इंश्योरेंस कंपनी यस इंश्योरेंस एजेंट का जीएसटी भरती है रिवर्स चार्ज पे. कैश्यू नट्स में जो सप्लायर है एग्रीकल्चरिस्ट, उसकी लायबिलिटी परचेजर पे आती है. बात सुनो. तो अगर जहां पर गुड्स और सर्विस रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी आपके ऊपर आई हुई है, उसको कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं डाल सकते. यानी कि उसका तो नॉर्मल टैक्स आपको जमा करवाना पड़ेगा. तो लिखना जरा, लिखो इसी पॉइंट पे स्टार लगा के लेफ्ट राइट में लिख लो. अ सप्लायर, इनफैक्ट अ रेसिपिएंट, हाँ ये रेसिपिएंट में बढ़ता है ना. अ रेसिपिएंट कवर्ड अंडर, लिखो लिखो डिक्टेट करवा रहा हूं. रेसिपिएंट कवर्ड अंडर 93 और 94, रेसिपिएंट covered under 93 or 94, recipient covered under 93 or 94, buying oblique purchasing goods or services, buying oblique purchasing goods or services on reverse charge, on reverse charge basis. Yes, on reverse charge basis. Cannot cover those goods and services. आगे यूज भी करेंगे. Cannot cover those goods and services on reverse charge basis. Cannot claim those goods and services under composition scheme. Cannot cover those goods and services under composition scheme. That is the normal tax. That is the normal tax will have to be deposited on those goods and services. तो जो सप्लायर का जीएसटी होगा ना 18, 28, 12, 5, उसका जीएसटी आपको पूरा जमा करवाना. उसको आप 1%, 5% में डाल सकते. तो अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में कुछ गुड्स खरीद रहे हो और कुछ गुड्स बेच रहे हो, तो जो बेच रहे हो उस पर तो कॉम्पोजिशन स्कीम लगा दो. जो आपके रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी है उसको नॉर्मली जमा करवाएंगे. अ रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में आएगा. देखो भाई, अगर तुम रजिस्टर्ड नहीं हो तो कॉम्पोजिशन स्कीम में क्यों आओगे? क्योंकि तुम्हारे पे जीएसटी है ही नहीं. जब तुम नॉर्मल स्कीम में भी नहीं हो, बात समझो, तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में क्या आओगे? लेकिन अगर रजिस्टर्ड हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो. यस, अगर रजिस्टर्ड हो तो. उस एग्रीगेट टर्नओवर, अच्छा इसमें आने के लिए लघु उद्योग, स्मॉल सप्लायर, मैंने बोला स्मॉल स्केल सप्लायर, तो स्मॉल की परिभाषा क्या है पढ़िए. एग्रीगेट टर्नओवर 2 क्लॉज 6 में डिफाइंड है. 2 क्लॉज 6 इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. तो अगर आपको 21-22 में चेक करना है कॉम्पोजिशन स्कीम, तो कौन सा फाइनेंशियल ईयर चेक करोगे? बताइए. अगर आपको कॉम्पो स्कीम 20-21 में चेक करना, बहुत बढ़िया. और 20-21 अभी दोबारा बताऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल बताऊंगा. और 2021 में अगर चेक करना है तो कौन सा साल देखेंगे? 19-20. तो जिस फाइनेंशियल ईयर में कॉम्पोजिशन स्कीम में आना चाहते हो, उससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में चेक करेंगे.
डोंट वरी, डिड नॉट एक्सीड 1 करोड़, आपकी लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर ना हो, स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब क्या है, या देखिए सरकार चाहे तो ये 1 करोड़ की लिमिट 1.5 करोड़ तक कर सकती है, क्योंकि आजकल लघु उद्योग भी बढ़ रहे हैं। तो अगर 1.25 करोड़ की टर्नओवर है लघु उद्योग की, वो तो कॉम्पो में आएगा नहीं, तो गवर्नमेंट ने ये पावर है गवर्नमेंट के पास कि ये लिमिट 1 करोड़ की जगह लास्ट ईयर 1.5 करोड़ रबर बैंड को खींच देंगे। तो बेटर है कि आप लोग भी कॉम्पोजिशन में आ जाओ, 1.25 करोड़ वाले, 1 करोड़ 40 वाले भी। तो लघु उद्योगों को भी अच्छा खासा टाइम लिमिट, अच्छी खासी लिमिट दी हुई है कि 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर वाले भी गवर्नमेंट लिमिट कर सकती है। हर स्टेट की अलग अलग है, बताऊंगा। मे ऑप्ट, मे लिखा है बेटा, ऑप्ट ऑप्शनल हो गया ना, ऑप्शनल स्कीम है, ऑप्शनल। इन ल्यू ऑफ टैक्स पेबल अंडर 9(1), जो नॉर्मल टैक्स होता है 9(1), हाँ जो आपका 9(1) का नॉर्मल टैक्स है, इन ल्यू ऑफ, इन ल्यू का मतलब इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ, हाँ नॉर्मल टैक्स की जगह, नॉर्मल स्कीम की जगह इसमें आ जाओ। और उसमें अमाउंट ऑफ टैक्स कैलकुलेटेड, जो आपका न्यू टैक्स रेट्स होंगे, रिड्यूस्ड एज प्रिस्क्राइब्ड नॉट एक्सीडिंग 5%। सर आपने 1% बोला था बेटा, 1% टोटल जीएसटी रेट बोला है, तो 0.5% सीजी, 0.5% एसजी, 0.5% सीजी, 0.5% यूटी जीएसटी। और देखो ये 2.5%, यानी कि 2.5 + 2.5, इसका रेट हो जाएगा 2.5 + 2.5। रुको सुनते रहना, समझते रहना, प्रैक्टिकली करेंगे। 5%, यहां पर 0.5 + 0.5, ये हो गया 1%, ये हो गया 0.5% + 0.5%, ये हो गया 1%। बेटा ये कहना है पढ़े, टर्नओवर पे देगा मैन्युफैक्चरर के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए, उत्पादक, तो उत्पादक के लिए जीएसटी का रेट हो जाएगा 1%। ये कौन है भाई, रेस्टोरेंट सर्विसेज, इसके लिए 5%। याद करो 1%, 5%, 6% रेट बताया, तो 1 आ गया, 5 आ गया। सप्लाई ऑफ फूड और एनी अदर आर्टिकल ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन और एनी ड्रिंक अदर देन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, तो जो अल्कोहल प्रोवाइड करते हैं रेस्टोरेंट्स, उनके लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, नॉन एल्कोहलिक रेस्टोरेंट्स, नॉन एल्कोहलिक, एल्कोहलिक रेस्टोरेंट्स, नॉन एल्कोहलिक रेस्टोरेंट्स, क्योंकि जहां पर खाना, सप्लाई ऑफ फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, जूसेस हो, एंड 0.5% + 0.5, 1% बन जाएगा ना। टर्नओवर इन द स्टेट इन केस अदर सप्लायर्स, बेटे ये ट्रेडर है, ये ट्रेडर है, तो ट्रेडर के लिए कॉम्पोजिशन टैक्स अपनी जेब से देगा 1%, मैन्युफैक्चर देगा अपनी जेब से 1%। तो 1 करोड़ की टर्नओवर है तो 1-1 लाख रुपए देंगे, 50,000। और अगर यूनियन टेरिटरी में है तो 50,000 सीजी, 50% यूटी जीएसटी। रेस्टोरेंट वाले की टर्नओवर 1 करोड़ है तो वो देगा 5 लाख रुपए, 2.5 लाख करके। बात समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, दोबारा पढ़ते। तो भाई जितना भी तुमने अभी तक जीएसटी में किया है भूल जाओ। हाँ 5 डोर तो ओपन करने पड़ेंगे। फिर आपके पास चॉइस होगी कि आप 9(1) की जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम मैक्सिमम 20% सीजी, 20% एसजी, 40% तक लगा सकते हैं, वो स्कीम को छोड़ दो, इसमें आ जाओ। इसमें आपको जीएसटी इतना देना पड़ेगा, लेकिन आपकी टर्नओवर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर नहीं हो। कहीं की जगह गवर्नमेंट 1.5 करोड़ भी कर सकती है, 1.5 करोड़ भी कर सकती है, यस। लेकिन दोस्तों, गवर्नमेंट कह रही है, सुनिए जरा नोटिफिकेशन पढ़ना जरा, एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 75 lakhs। देखो एलिजिबल पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल डिड नॉट एक्सीड 1.5 करोड़, तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लेके आए हुए हैं और वो लिमिट 1.5 करोड़ कर दी गई है। देखो हमने यहां पर क्या पढ़ा था कि 1 करोड़ की लिमिट को 1.5 करोड़ कर सकते हैं, और 1 करोड़ की लिमिट को 1.5 करोड़ करने के लिए गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाएगी और सेट लिमिट को बढ़ा देगी, और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाई, यस। गवर्नमेंट ने वो 1 करोड़ की लिमिट इनहांस कर दी 1.5 करोड़ रुपए। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा ये 1 2 3 4 5 6 8 स्टेट्स के लिए, 8 स्टेट्स के लिए लिमिट घटा दी, एक बढ़ाने की बजाय घटा दी और लिमिट कर दी 75। तो भाई 8 स्टेट्स को छोड़ दो, वहां तो लिमिट गवर्नमेंट ने 1 करोड़ की लास्ट ईयर की कर दी 1.5, और कुछ पिछड़े स्टेट्स हैं ये कह रहे हैं हमारे तो सारे डीलर ही
80 लाख 90 लाख की सेल होती है सबकी, और अगर 1 करोड़ भी लगाओगे तो सारे कॉम्पो में आ जाएंगे, हमें टैक्स ही नहीं मिलेगा। हमें तो हमारा जो बिगर उद्योग है, बिग उद्योग है, वो भी इसमें आ जाते हैं, बिग उद्योग वाले, क्योंकि 70 लाख 80 लाख 95 लाख, तो वहां पर इन लोगों ने रिड्यूस करवा दी लिमिट कि भाई लघु उद्योग का हमारा मतलब है हमारे टर्नओवर 75 लाख की लास्ट फाइनेंशियल ईयर। ये भी याद करने का तरीका बताऊंगा, यस मैं बताऊंगा। और मैन्युफैक्चरर में अगर ये भी 4 चीजें मैन्युफैक्चर करते हो, उत्पादक हो 4 चीजों के, तो हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं देंगे। ट्रेडर हो चलेगा, लिखा है ना, रजिस्टर्ड पर्सन shall not be eligible to offer composition scheme under 10(1) if such person is a manufacturer below goods, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, आइसक्रीम बनानी या उसके साथ खाने वाली आइस बनानी, चाहे उसमें कोको हो ना हो, चॉकलेट हो ना हो, पान मसाला बनाते हो, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट तंबाकू, और एरेटेड वाटर सॉफ्ट ड्रिंक्स, एरेटेड में एयर डाली जाती है ना, तो सॉफ्ट ड्रिंक्स पेप्सी कोक। तो ये इन लोगों के, अगर ट्रेडर हो आप, खरीद कर बेचते हो, तो कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो। उत्पादक हो यहाँ के, क्योंकि एक ऐसी चीजें बिकनी बिकनी है, क्यों टैक्स रेट कम करवा जाए अपना। तो बेसिकली 8 स्टेट्स में लास्ट ईयर की टर्नओवर 75 लाख, बाकी स्टेट्स में लास्ट ईयर की टर्नओवर 1 करोड़। दो लॉ में लिखा था 1 करोड़ है, हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने 8 को छोड़ के बढ़ा के 1.5 करोड़ कर दी लास्ट ईयर। लघु उद्योग की डेफिनेशन वो आपकी नॉलेज के लिए, बार बार लघु उद्योग वर्ड यूज मत करना, एक्ट में लॉ में कहीं नहीं लिखा, लेकिन इंटेंशन वही है। और 8 स्टेट्स में कर दी 75 लाख। अब इसको याद कैसे किया जाए, ये मैं आपको समझा रहा हूं। फिर आइए जरा, तो मैं अब ये लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर मैं आपको लिखवा रहा हूं, लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर फॉर क्लेमिंग बेनिफिट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। अच्छा, ये जो स्कीम की बात कर रहे हैं ना भैया, ये 10(1) वाली स्कीम है, ये बाबा 10(1) वाली स्कीम। एक दूसरी स्कीम है जो सर्विस प्रोवाइडर्स की है, जो रेस्टोरेंट के अलावा, वो 10(2) है, उसकी लिमिट के बारे में चर्चा नहीं हुई अभी तक। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर लिख रहा हूं स्टेट्स पब्लिक यूनियन टेरिटरी 10(1) वाली की लिमिट, और दूसरी स्कीम है 10(2)(a), जिसकी तो अभी इन्होंने चर्चा भी नहीं करी। दिस इज फॉर मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर और रेस्टोरेंट सर्विसेज, एंड दिस इज फॉर अदर सर्विसेज, अदर सर्विसेज। ठीक है ना भाई। आइए जरा, हाँ जी, तो पहले हम आते हैं मणिपुर पे। ये सर मणिपुर क्यों बताऊंगा, मणिपुर, त्रिपुरा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम लिख रहा हूं, आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो। मिजोरम, नागालैंड, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। हाँ जी, पांचवा मेघालय, उत्तराखंड, हाँ जी, मेघालय, उत्तराखंड। सिक्किम, यस माय डियर फ्रेंड, सिक्किम। एक सेकेंड, सिक्किम। Eighth is, just a second guys, just a second guys, अरुणाचल प्रदेश। Just a second guys, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यस अरुणाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर, असम,
हिमाचल प्रदेश, वो 8 स्टेट्स वो है यहां तक शुरू की 8। इनमें लिमिट है 75 लाख की। लास्ट ईयर की टर्नओवर 75 लाख तक थी, लघु उद्योग का पर्सन माना जाएगा। और करंट ईयर में आपको हम कॉम्पोजिशन स्कीम में आने देंगे। ये 8 स्टेट्स ऐसी है। सर याद कैसे करेंगे बताते हैं। और ये बाकी जो जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल है, यहां पर 1.5 करोड़ की लिमिट है। 1.5 करोड़ की लिमिट है लघु उद्योग, क्योंकि यंग स्टेट्स में थोड़ी डेवलपमेंट ज्यादा है, तो यहाँ पर 2-2 करोड़ के लोग भी हैं, लेकिन वहां पर सारे लोग 80-90 में हैं, और सबको अगर 1.5 दे देंगे तो सभी लघु उद्योग में आ जाएंगे, तो फिर भाई टैक्स कहाँ से मिलेगा? अमीरों से टैक्स भी तो लेना है। और ये 12 को अदर स्टेट्स या अदर यूनियन टेरिटरीज कह सकते हो, अदर यूनियन टेरिटरी कह सकते हो। यस गाइस, यहां पर भी लिमिट 1.5 करोड़ है। मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने 11 स्टेट्स लिखवाई है ना गाइस, इनको जब जीएसटी बन रहा था ना, एक नाम दिया गया है। हाँ, जब भी मैंने ये 11 इकट्ठे करी, वैसे तो 8 हैं, लेकिन 11 इकट्ठे लिखवाई हैं। इनको नाम देते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, क्योंकि जब जीएसटी बन रहा था तो इन लोगों ने कहा हमारी लिमिट्स कम चाहिए होंगी हम स्टेट्स में। सो ये 11, तो 1 से 11 को हम बोलते हैं, लिखना जरा नीचे, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। ये मेरा बॉक्स बंद कर देता हूँ ना मैं यहाँ पर। अब ये 1 to 11 स्टेट्स जो हैं, इनको लिखेंगे हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। हाँ जी, लिखो जी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। और ये कहाँ लिखी हुई है? आर्टिकल 279 ए। अगर मैं एग्जैक्ट बात करूं, एक सेकेंड से अगर ढूंढ लेता हूं, 279 A4G या A4B है, अब मुझे वो याद नहीं आ रहा है, तो हम 279 A4 एग्जैक्ट अगर ढूंढे तो मिल तो जाएगा, लेकिन अब मेरा इतना एफर्ट डालने का मन नहीं है इस पॉइंट पर। लेकिन अगर कुछ इधर उधर होगा, आई लेट यू नो। 279 A4G, एक बार हम चेक ही कर लेते हैं। आप इतने कॉपी करो जरा, एक सेकेंड गाइस। हम एक बार अपना सहायता ले लेते हैं कि एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट आ जाए ना, ये स्पेशल कैटेगरी से 11 बताओ, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ भैया, आर्टिकल 279 बच्चों, 279 A4G, बिल्कुल सही है, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो ये आर्टिकल 2 से 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है। अब इसमें से भी चॉइस दी गई है, आपको कम ज्यादा करना है, कम तो हो रही है, लेकिन 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। अब ये 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में इनको मैंने नाम दे दिया एक, हाँ याद करने के लिए, MANTRIMINA, मंत्री मीना। मैंने इन चारों को नाम दे दिया आपको याद करने के लिए, मंत्री मीना। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में मंत्री मीना। देखो मैं नीचे समरी बना रहा हूं, देखो जी, पूरे इंडिया की जो स्टेट्स हैं गाइस, जो पूरी इंडिया की स्टेट्स हैं, रुको 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 मेरे, अरे रुक जा भाई, रुक जा, कहां भागे जा रहा है, रुक जाओ भैया। ये पहला पॉइंट, जो हमारी स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में मंत्री मीना वाली, हाँ मंत्री मीना, इस पे लिमिट है मेरे बच्चों 75 लाख की। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आर्टिकल 279 A4G के हिसाब से 11 है, और मंत्री मीना की लिमिट है 75 लाख। यहां तक क्लियर है बच्चों? प्लीज बताइएगा एक बार। अच्छा, और दूसरी है मूसा, है घूसा घूसा नहीं बेटा, मूसा, मूसा। अब ये कैसे, MUS और A, मूसा। तो मंत्री मीना और मूसा पे भी लिमिट है कितनी भाई? 75 लाख की, क्योंकि आगे रजिस्ट्रेशन की लिमिट्स करवाऊंगा ना, उसमें भी ये मंत्री मीना घूसा काम आएगा। यस, और तीसरी स्टेट है आपकी
यस गाइस, मंत्री मीना मूसा हज वाली पर 1.5 करोड़ की लिमिट है लास्ट ईयर की, लघु उद्योग होने के लिए। हज का मतलब हिमाचल, JNK, असम, ये हज। हाँ, और जो नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, इसकी लिमिट क्या है जी बताइएगा, अगर कॉम्पोजिशन स्कीम में आप तो 1.5 करोड़ ही है। मैंने बोला ना अदर में 1.5 करोड़ ही लिखवाया है, तो 1 करोड़ तो किसी के लिए नहीं रह गई। अदर स्टेट्स, अरे रुक जा भाई, को भागे जा रहा है। ये देखो भैया, अदर स्टेट्स 1.5 करोड़, तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर दी 1.5 करोड़, ठीक है। और ये जो मैंने समरी दी है 10-1 की स्कीम की है, 10-1 की स्कीम। सर जो सर्विस प्रोवाइडर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उन सब के लिए ये अदर सर्विस की लिमिट 50 लाख है सारी स्टेट्स में, तो इट इज 50 lakhs फॉर ऑल। तो ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल है। तो यहाँ पर भैया सर्विस प्रोवाइडर्स की जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो 50 lakhs है, 50 lakhs फॉर ऑल। क्या हो गया जी, चार्ट बॉक्स में क्या चाट पकौड़ी खानी है? सेकंड पॉइंट दोबारा बताओ, सेकंड पॉइंट, अच्छा पहले का ये तो कोई कमेंट अभी बता देंगे जी। 50 lakhs, तो ये जो 10-1 के लिए बताया मैंने, और 10-2 के लिए, 10-2A की स्कीम के लिए, चाहे भाई स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हो, नॉन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हो, सबके लिए 50 lakhs की एग्रीगेट लिमिट लास्ट ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर चेक करना है उसका गत्ता नहीं बेटा, गत्ता नहीं, गत फाइनेंशियल ईयर। बोलो भैया, चलिए ठीक है ना, अब हम करेंगे इसको, आराम से करेंगे, बहुत मजेदार चैप्टर है, मुझे पर्सनली तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि एक छोटा सा चैप्टर है और मजा बहुत आता है। आइए जरा, अच्छा उसके बाद अब हमें ये जो लिमिट्स है ना, ये एग्रीगेट टर्नओवर क्या चीज होती है? हाँ, ये एग्रीगेट टर्नओवर की लिमिट्स। अब ये एग्रीगेट टर्नओवर देखना पड़ेगा भैया हमें, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज एग्रीगेट टर्नओवर। और ये एग्रीगेट टर्नओवर कहाँ दिया हुआ है, आइए जरा गाइस, ये एग्रीगेट टर्नओवर दिया हुआ है, यस, ये मिलेगा आपको एग्रीगेट टर्नओवर 2 क्लॉज 6 में, जो मैंने नोट्स में दिया हुआ है। मैं चाहूंगा कि एग्रीगेट टर्नओवर आप खुद पढ़ें, फिर 10-2A की स्कीम तो बाद में आएगी, लिमिट पहले बता दी उसकी मैंने। ये राजी एग्रीगेट टर्नओवर, पढ़िए जरा। लास्ट ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर 2 क्लॉज 6 में चेक करनी है। आ जाओ भैया, एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। अच्छा, टैक्सेबल सप्लाईज का मतलब जिस पर जीएसटी का रेट है, excluding the value of inward supply on which tax is payable by a person reverse charge। जो आपकी खरीद है, रिवर्स चार्ज की खरीद, रिवर्स चार्ज की खरीद, अभी सब यूज करेंगे, इसको एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करते। रिवर्स चार्ज की खरीद को एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करते। एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एग्जेम्प्ट अगर कोई गुड्स ऐसे हैं या सर्विस ऐसे जो एग्जेम्प्ट है वो भी लेना है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, लास्ट ईयर को एक्सपोर्ट किया इंडिया से बाहर, उसको भी लेना है एग्रीगेट टर्नओवर में। इंटर स्टेट सप्लाईज, अगर आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट माल बेचा है, गुड्स सर्विस, वो भी लेना है। पर्सन हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, एक असेसी की ऑल टर्नओवर लेनी है, चाहे एग्जेम्प्ट हो, नॉन टैक्सेबल हो। अच्छा, नॉन टैक्सेबल आएगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बेचे या एल्कोहलिक लिकर बेची, उसकी टर्नओवर आएगी एग्रीगेट टर्नओवर में। मैं नहीं कह रहा एल्कोहलिक लिकर वाले लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में आते, मैं ये कह रहा हूं क्या लास्ट ईयर अगर आपने कोई पेट्रोल का प्रोडक्ट बेचा, इस साल जब कॉम्पोजिशन में आ जाओगे तो ऑब्वियसली मैंने बोला ना आप एल्कोहलिक लिकर नहीं कर सकते, लेकिन लास्ट ईयर एग्रीगेट टर्नओवर में क्या एल्कोहलिक लिकर बेची वो आएगी। क्वेश्चन ये है,
नो सर, वो आएगी क्योंकि एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अगर आपको याद आए, एग्जेम्प्ट सप्लाई में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आता है। साला टैक्सेबल सप्लाई भी लेना है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी लेना है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी लेना है, एक्सपोर्ट सप्लाई भी लेना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको सप्लाई के अंदर सब लेना है। यस, याद रखिएगा। अरे क्या हुआ जी? आपको और एक एसएससी की ऑल टर्नओवर, डोमेस्टिक भी इंटरनेशनल भी, सेल वाली ऑल टर्नओवर, खरीद नहीं, बिक्री बिक्री। तो एक एसएससी की ऑल टर्नओवर, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, सारी टर्नओवर आपकी लेनी है। टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, नॉन टैक्सेबल, इंटरस्टेट, हैविंग सेम पैन। अगर आपके दो कंपनियां एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड, उनको कंबाइन नहीं करेंगे, ऑल इंडिया बेसिस पे लेनी है। अभी करेंगे क्वेश्चन, बट उसमें जीएसटी को एक्सक्लूड कर देना। तो अगर कोई बोलता है मेरी एग्रीगेट टर्नओवर, सुनो, मेरे लड्डू गोपाल 1,18,00,000 है, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 1,18,00,000 है, इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। बताइए एग्रीगेट टर्नओवर क्या जाएगी? 1 करोड़। बहुत ही बढ़िया। तो एग्रीगेट टर्नओवर विल बी ट्रीटेड एज 1 करोड़। एग्रीगेट टर्नओवर विल बी ट्रीटेड एज 1 करोड़। यस, एग्रीगेट टर्नओवर विल बी ट्रीटेड एज 1 करोड़। तो 1,18,00,000 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%, मेरी एग्रीगेट टर्नओवर विल बी ट्रीटेड एज 1 करोड़। बहुत बढ़िया। चलिए, अब इसी को ताने बाने को, अब वो रिवर्स चार्ज और ये सब चीजों को इंक्लूड करना है। पहले तो हम ये चेक करेंगे, भाई लास्ट ईयर की क्या आपकी औकात है कॉम्पोजिशन आने में? आप बोलते हो यस। फिर करंट ईयर में कैसे आपको कॉम्पोजिशन टैक्स देना है, वो सब हमें करना है। आइए जरा, मुझे लग रहा है आज की क्लास अब प्रैक्टिकल पोर्शन में ही जाएगी, एक घंटा, जहां पर हमें स्कीम करनी है। चलिए आइए, अब बस अब डिस्कस करेंगे क्या ये 10(1) वाली स्कीम, 10(2) की तो बात ही नहीं करी, लिमिट्स लिखवा दी, 50 लाख है वो तो डिस्कस या डिटरमिन, हाँ जी मेरे बच्चों, वेदर पर्सन इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, हाँ, अंडर सेक्शन 10(1) फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। क्या 20-21 में? तो मैं 19-20 की टर्नओवर दूंगा। केस 1, टर्नओवर ऑफ 1920। एग्जेम्प्ट गुड्स, और ये बंदा कहां का है? दिल्ली बेस्ड है, तो मैं दिल्ली की फिर लिमिट याद रखना ना माइंड में। एग्जेम्प्ट गुड्स बेचे बेटा 40 लाख के, टैक्सेबल गुड्स खरीद बेचे 30 लाख के, एग्जेम्प्ट सर्विसेज दे दी 20 लाख की, टैक्सेबल सर्विसेज दे दी 40 लाख की। ठीक है, अगर आपने कुछ, हाँ, परचेजेस करी है रिवर्स चार्ज पे, परचेजेस ऑफ गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज ऑन रिवर्स चार्ज 25 लाख। दिस इज टर्नओवर ना, गुड्स ऑब्लिक सर्विसेज सोल्ड ऑन रिवर्स चार्ज, वो खरीद है, ये बिक्री है। 10 lakhs। 6, इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विसेज आपने बेचे हैं, इंटरस्टेट बेचे हैं बेटा, इंटरस्टेट गुड्स एंड सर्विसेज 5 लाख, 5, 6, 7, अच्छा ये 5, 7, 8, एक्सपोर्ट
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 4 lakhs। प्लीज आप बताइएगा क्या बंदा 20-21 में कॉम्पोजिशन स्कीम लेने के लिए एलिजिबल है? प्लीज करिए, प्लीज करिए। नो सर। नो सर। नो सर। चलो चेक करते हैं क्या। अच्छा, मेरा आंसर तो यस आ रहा है। चेक कर लेते, मे बी मैंने एक बार ऐसे ही देख के वो बनाया। 40 lakhs आएगा जी, आया ना? यस सर। टैक्सेबल गुड्स जो बेचे लास्ट ईयर, चाहे ये इंट्रा ही होंगे, क्योंकि इंटर यहाँ पर लिखा है तो ये इंट्रा होंगे, ये इंट्रा होंगे, है ना, जो इंटर नीचे लिखा हुआ ही है। अच्छा, एग्जाम सर्विसेज, टैक्सेबल सर्विसेज, परचेज ऑफ गुड्स ऑन रिवर्स चार्ज नो सर। नहीं आएंगे। गुड्स सोल्ड ऑन रिवर्स चार्ज, नो सर। नो सर। नो नो। सप्लाई नहीं, इनवर्ट सप्लाई ऑन रिवर्स चार्ज नहीं आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। इनवर्ट सप्लाई, ये फॉरवर्ड सप्लाई ये आएगा। एग्रीगेट टर्नओवर देखो मैं आपको बताऊं। सुनो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अटकोगे तो मीन समझ रहे हो, नहीं अटकोगे तो समझ आया ही नहीं। यहां पर क्या लिखा था, ये जो यहाँ पर बात लिखी थी, आज यही करेंगे बस, अब प्रैक्टिकली करेंगे, अब और कुछ थ्योरी नहीं पढ़ा सकता, इतना डाइजेस्ट सोचा बहुत है, नहीं तो रात को भूत आएंगे सपने में। इन सब्जेक्ट टू द 9394, 9394 जो है उस पे कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं लगेगी, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर करने का कॉन्सेप्ट अलग है। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर तुम कोई गुड्स सर्विसेज रिवर्स चार्ज पे दे रहे हो या खरीद रहे हो, वो नॉर्मल स्कीम में ही रहेंगे रिवर्स चार्ज के, उसको कॉम्पोजिशन में लाकर उसका टैक्स कम नहीं हो सकता। तो अगर आपकी कोई खरीद या बिक्री रिवर्स पे है तो उसमें रिवर्स चार्ज का सिस्टम ही लगाओ, नॉर्मल 9394 लगाओ। हम 91 को 101 में ला रहे हैं, 9394 को 101 में नहीं ला रहे। 9394 इज नॉट कवर्ड इन 101। तो जो गुड सर्विस 9394 में है वो 101 में नहीं, हम तो 91 को 101 में ला रहे हैं। बात समझो। तो सौम्या ने पूछा था ना कि 9394 पे कुछ गुड सर्विस खरीदे या बेचे, उस पर रिवर्स चार्ज ही लगता रहेगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त, अब भूल जाओ 9394, उसमें क्या लिखा है भाई साहब, तुम एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो, उसके अंदर तुमने अगर कुछ रिवर्स चार्ज पे खरीदा है वो इंक्लूड नहीं करेंगे, खरीदने के लिए एक्सक्लूड कर रहे हैं। कहां गया, कहां मर गया जी, एक सेकेंड, आई एम जस्ट जो हाँ, इनवर्ट सप्लाई तो खरीद, रिवर्स चार्ज की खरीद नहीं आएगी एग्रीगेट टर्नओवर में। हम ये नहीं कह रहे किस पे कॉम्पोजिशन लगेगा नहीं लगेगा, 80 निकाल रहे हैं। टर्नओवर का मतलब सेल होता है ना बेटा, टर्नओवर का मतलब तो सेल होता है, तो परचेज कैसे हो जाएगी? लेकिन जीएसटी आप भर रहे हो तो वो सेल आपकी नहीं, आपकी तो परचेज है। सेल तो साले दूसरे की है जिसने आपको माल दिया है, उसका टैक्स आप भुगत रहे हो, समझो। तो इनवर्ट सप्लाई खरीद नहीं आएगी, बिक्री है रिवर्स चार्ज के 80 में आएगा, 80 में आएगा। तो परचेज ऑफ गुड्स ये नहीं आएगा, गुड्स सोल्ड रिवर्स चार्ज ये आएगा, इंटरसेट ये आएगा, ये आएगा। अब हम टोटल करें तो 40 और 30 70, 70 और 40 1 10, 1 10 और एक सेकेंड भाई, दोबारा 40 और 30 70, 70 और 20 90, 90 और 40 31, 31 और 10 1 40 और 9 149, 149 lakhs आ रही है और 1.49 करोड़ आ रही है ना भाई, 150। तब की कह रहे हैं ना, तो 1.5 करोड़ या 150 लाख। तो आपने कैसे, तो आपने मना क्यों किया कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आएगा? और दिल्ली की जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ तक है लास्ट ईयर की। तो मेरे हिसाब से तो इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, ही इज एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम under section 10(1) for financial year 2021 since 80 does not exceed 1.5 crores। बोलो भैया, बात समझ आई नहीं आई? तो आप लोग किस खुशी में उसको एग्रीगेट टर्नओवर को 1.5 करोड़ से ऊपर कर ही लिए थे भाई? ऐसी क्या कुछ? अच्छा चलो कोई इशू नहीं। तो यानी कि आपकी ना सारी अच्छा गप्पे मत लगाओ।
जहां टाइम से गप्पे लगाने लग जाएंगे। खरीद को नहीं लेना, बिक्री को लेना है, बात खत्म। बिक्री सेम स्टेट की हो, इंटर स्टेट की हो, नेशनल हो, बिक्री आएगी, बात खत्म। चलो इसी क्वेश्चन में मैंने बोला ना, इसी में आप रहेंगे। अब आइए, assumption, assume ये मणिपुर बेस्ड पर्सन है। बताइए क्या ये कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकता है 20-21 में? ओए होए, क्या बात है, क्या बात है, जोश आ गया। अब 11 बजे तक क्लास कर दो इनकी। नॉट एलिजिबल फॉर, नहीं जोश आ गया ना अब तो। So not eligible for composition scheme for financial year 2021 since 80 exceeds 80 exceeds 75 lakhs. Since 80 exceeds 75 lakhs. So not eligible for composition scheme. Yes, since aggregate turnover exceeds 75 lakhs. ये बात समझिएगा। तो बिक्री देखनी है हमें लास्ट ईयर की, बिक्री देश की, विदेश की, डिफरेंट ब्रांचेस की। खरीद नहीं देखनी, खरीद चाहे नॉर्मल हो या रिवर्स चार्ज की हो, खरीद नहीं देखनी, टर्नओवर देखनी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। 1920 में टर्नओवर, हाँ या मैं लिखूं इंट्रा स्टेट टर्नओवर, इंट्रा स्टेट टर्नओवर 1.2 करोड़। ठीक है, अच्छा उसके बाद ए बी बच्चों, टर्नओवर ऑफ गुड्स टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट दोनों, टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्ट 1.2 करोड़ और दिल्ली बेस्ड है। दिल्ली बेस्ड तो हम ले ही रहे हैं, चलो दिल्ली बेस्ड दोबारा लिख देता हूं, कोई टेंशन नहीं, दिल्ली बेस्ड। इंट्रा स्टेट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज एग्जेम्प्टेड प्लस टैक्सेबल 40 lakhs। बताइए इज ही एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन 2021? No, aggregate turnover 1.6 crores since it exceeds of financial year 2020 of financial year 1920। मैंने कहा हमसे करेंगे, अब कुछ आगे बढ़ना ही नहीं, थ्योरी पढ़ाई दी है 19-20। since aggregate turnover since 80 exceeds 1.5 crores not eligible for composition scheme in financial year 2021। तो आप यस क्यों कह रहे थे भैया उज्जवल? है उज्जवल? सर मैं इसको सब देख के पॉइंट तो सर मैं नहीं समझ पा रहा था कौन कह रहा है, मुझे लगा सर। चलो कोई नहीं, आप समझ आ गया? यस चलो बहुत बढ़िया। और रात को नींद आएगी आज, नहीं आने वाली है, या जीएसटी घूमेगा आज? सर मैं समझ गया। मैं सबकी बात कर रहा हूँ मैं तो। बहुत बढ़िया बेटा, फोन कर लेना 2-2:30 बजे अगर। मैं उठाऊंगा नहीं लेकिन। अच्छा बेटा 100 लिख ले, और एक 100 और 101 और 102, और लेडीज हेल्पलाइन 1099।
चलो, हाय राम। बता, आजकल की दुनिया में आपको नंबर नहीं मिलते, लोग बताओ कहाँ कहाँ से नंबर दोस्तों के, फ्रेंड के निकाल लेते हैं। अच्छा, कोई, हाँ हाँ, शौर्य से ले लेना, शौर्य के पास है। चलो, आइए। अच्छा चलो, फिर इसका नंबर ही ले लो, 100। अच्छा, अभी पहले समझ लो, फिर बात करते हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर 1.6 करोड़ ऑफ फाइनेंशियल 1920 एक्सीड कर गई, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए, अब इसी क्वेश्चन में, यस गाइस, मैंने कहा ना आप अब ज्यादा आगे नहीं जा सकते क्योंकि थ्योरी पढ़ ली, इसको समझना। एज्यूम एग्जेम्प्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज include exempt turnover of services include, yes my dear friends, exempt turnover of services, सुनिएगा मेरी बात, exempt turnover of services include, exempt turnover of services include exempt services of extending loans and advances, loans and advances in return of which interest of rupees 10 lakhs was received। क्या लिखा है इसका, क्या मतलब? एग्जेम्प्ट टर्नओवर ऑफ सर्विसेज में एक सर्विसेज है पैसे की लेन देन, ये मैं आपको जाके, अब जब नेक्स्ट चैप्टर हमारा एग्जेम्प्ट सर्विसेज का ही आएगा, तो जब हम पैसे की लेन देन करते हैं वो एक एग्जेम्प्ट सर्विस है। जब हम किसी को पैसा उधार देते हैं, बदले में ब्याज लेते हैं, तो वो एग्जेम्प्ट सर्विस मानी जाती है। तो हमारी एग्जेम्प्ट सर्विसेज हजारों हैं, हजारों नहीं मैं बोलूंगा, 50-60 है मान लो। तो उसके अंदर एक एग्जेम्प्ट सर्विस है, बाकी एग्जेम्प्ट सर्विसेज और होंगी जिसमें हमने लोन दिए हैं, बदले में हमें ब्याज, जो उसका कंसिडरेशन है वो 10 लाख है। तो क्वेश्चन ये उठता है, इससे क्या हमारे क्वेश्चन की सेहत पे कोई असर पड़ेगा? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त तो हमें लिखा था हमें सारी एग्जेम्प्ट गुड्स, सारी एग्जेम्प्ट सर्विसेज लेनी है, तो इससे कोई हमारे सेहत पे असर पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि लॉ में एग्रीगेट टर्नओवर में तो कुछ नहीं लिखा, लेकिन सेक्शन 10(1) में लिखा है वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ एग्जेम्प्ट सर्विस बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन, एडवांसेस टू बी एक्सक्लूडेड while computing aggregate turnover for determining eligibility of composition scheme। क्या तुम्हारी औकात है कॉम्पोजिशन में आने के लिए? तो उस औकात में एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त हम इंटरेस्ट एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देते हैं, यानी कि हमें एग्रीगेट टर्नओवर में पहली बार एक चीज समझ आई है, या पहली बार एक चीज एक्सक्लूड करनी आई है। वैसे तो हमारी एग्रीगेट टर्नओवर अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6 1.6 करोड़ है, 1.6 करोड़ है, कोई नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन उसमें से एक्सक्लूड किया जाएगा, यस एक्सक्लूड किया जाएगा एग्जेम्प्ट सर्विसेज। वैसे तो टोटल इंक्लूड कर लिया, एग्जेम्प्ट सर्विसेज ऑफ लोन्स फॉर इंटरेस्ट, जिसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है, वो है 10 लाख की। तो 10 लाख घटाएंगे तो गाइस हमारी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ की आ जाएगी। और दिल्ली बेस्ड मैं मान के चल ही रहा हूं, इस क्वेश्चन में भी मैं दिल्ली बेस्ड मान के चल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 में ये अज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 2 ही है। सो इस केस में मेरी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ है, तो सिंस 80 अप टू 1.5 करोड़, देयरफॉर एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम इन फाइनेंशियल ईयर, हाँ इन फाइनेंशियल ईयर 2021। अब इसका लॉजिक क्या है? अरे होता है ये है कि कई बार जो एग्जाम सर्विसेज होती हैं उसमें ना पैसा, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा होता है,
हम उसको लेन देन में लगा देते हैं, क्योंकि बिजनेस में होता ही है, हम किसी को लोन एडवांस दे देते हैं, बदले में ब्याज ले लेते हैं। अब ये होता है, ये एग्जेम्प्ट हो जाता है, इसमें जीएसटी तो नहीं लगता, लेकिन इसके कारण ये एटी में इंक्लूड हो जाती है। तो गवर्नमेंट ने कहा ये सर्विसेज तो यार हर आदमी देता ही है, हम इसके कारण इसको एक्सक्लूड नहीं कर सकते, इसको इनएलिजिबल नहीं कर सकते, तो हम दूसरी एग्जाम सर्विसेज तो एटी में ले लेंगे, क्योंकि अमूमन वो नहीं दी जाती है, तो एक नॉर्मल केस में पैसा पैसा है किसी को ब्याज के रूप में दे दिया जाता है, ये एग्जाम तो है जीएसटी से, लेकिन ये कॉम्पोजिशन स्कीम की एटी में इंक्लूड नहीं होगी। मेरी बात समझ आई या नहीं आई, बोलो जी। यस सर, आ सर गई। आ गया सर। एक पॉइंट है सर जी सर। थैंक यू जी, थैंक यू, बताओ जी। सर एक पॉइंट है सर, यहाँ सर जो लिखा हुआ है सर स्पेशल पॉइंट में सर, हम्म द वैल्यू ऑफ एक्सेस सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन्स एंड loans or advance so far as the considered of represent by way of interest or discount shall not consider for above limit of 10%. हाँ, वो कहाँ पहुंच गए तुम, उल्टा सीधा पढ़ते हो, जो मैं पढ़ाता हूँ वो तो तुम पढ़ते नहीं हो, है उज्जवल, मैंने ये लाइन पढ़ाई है, आप कहाँ पहुंच गए लिमिट ऑफ 10% पे। टीचर जो पढ़ाएगा वो तो पढ़ोगे नहीं, कहीं और घुस घुस के देखते रहोगे कि कोई चीज मिल जाए। मैं थप्पड़ मारूंगा खींच के, ये जब मैंने ये पढ़, जब मैंने स्पेशल पॉइंट ये पढ़ा रहा हूँ, नजर तरी ना, और तो मैंने वो पॉइंट पढ़ाया, हद है यार। अच्छा अभी अभी सबूत आ जाएगा, उसमें मार्किंग होगी, जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसमें मार्किंग होती है, रुक जा तेरे सामने, अभी मैं तेरे फाइन लगाऊंगा तेरे पे, रुक जा रुक जा एक मिनट, जहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ ना उसमें मैं टिक करवा देता हूँ, देखिए जो भी मैंने चीजें पढ़ाई हैं उस पर मार्किंग है। एक मिनट, अब देखो, ये देखो, ये देखो, ये आपस, अच्छा आपस में कमेंट मत करो, अब मैं करूंगा तो बुरा नहीं लगेगा, हो सकता है आप लोगों के आपस में कमेंट उसको बुरे लगे, ऐसे नहीं करो, मेरी बात, आपस में कमेंट नहीं करो। तुम लोग ऐसे ही हो, पता है, सच में कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट करता नहीं, किताब खोल लेगा, ये देखेगा इधर या उधर या उधर या इधर, जो भाई जो पढ़ा रहा हूँ वो तो पढ़ ले। तू ऐसा ऐसा कर, 10 साल भी लगा ले, पॉइंट समझ नहीं आएगा मेरे पढ़ाए बिना, मैं आज कह रहा हूँ, चैलेंज करता हूँ, मेरे बिना पढ़ाए इसको तू किसी से भी पूछ ले, उस टीचर तक को नहीं आता भाई है क्या पॉइंट, चैलेंज करता हूं मैं। चलो आओ, मजाक की बात है, छोड़ो भैया, जो करवाए उस पर कंसंट्रेट करो, लेफ्ट राइट किताब को मत खोलो, जो मैं बोलता हूं वही देखो। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर भैया ये एग्जाम सर्विसेज होती हैं, अब बेचारा बेमतलब पैसे की लेन देन के चक्कर में जहां पर जीएसटी लगना नहीं, बेचारे कॉम्पोजिशन स्कीम खराब हो रही थी तो गवर्नमेंट का एक्सक्लूड कर देते हैं, और ये हर बंदे देते हैं, एक्स्ट्रा फंड्स आ जाते हैं, लोन वोन दे देते हैं, उसका ब्याज मिलता है, एग्जाम्प्ट होती है, जीएसटी लगता नहीं, बेमतलब में कॉम्पोजिशन स्कीम खराब कर देती है, तो हमने कहा इसको एक्सक्लूड है। लेकिन और कोई एग्जाम सर्विसेज है वो एक्सक्लूड नहीं करेंगे, यस वो एक्सक्लूड नहीं करेंगे। आइए सर नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, इसकी ना 2 ब्रांचेज हैं, ये इसकी 19-20 का प्रोविजन है, 2 ब्रांचेज है, 19-20 का प्रोविजन बताऊंगा, मणिपुर में भी ब्रांच है और दिल्ली में भी है। मणिपुर की उसकी टर्नओवर, हाँ जी बेटा 50 लाख है, और दिल्ली की टर्नओवर, 2 ब्रांचेज है ना उसकी, दिल्ली की टर्नओवर 2 ब्रांच, ब्रांच 1 ब्रांच 2, और दिल्ली की टर्नओवर उसकी है 40 लाख। क्या वो एलिजिबल है 20-21 में कॉम्पोजिशन में आने के लिए? सर ये तो पता ही नहीं है, दिल्ली बेस्ड नहीं है वो, नहीं देखो, एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया की है, पहले वो निकाल दो, बात ही खत्म, भूल जाओ, एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस है, ऑल इंडिया बेसिस, बताओ कितनी? 90 लाख। तू ऐसा कर, वो ले ले, नींद की गोली है,
तुम सोचा, बता रहा हूँ उज्जवल, बता रहा हूँ, बेटर रहेगा टेक अ स्लीपिंग पिल, या वो, या ठेके पे जाके ना अद्धा पौवा ले ले थोड़ा सा। उज्जवल प्लीज टेक समथिंग। अब फिर आप नहीं बोलोगे बीच में, नहीं मैंने बोला ना आप नहीं बोलोगे, खाली मैं बोलूंगा। आप लोग कमेंट नहीं कर सकते आपस में, ये मेरा रूल है। मैं बोलूंगा तो वो मेरी बात का बुरा नहीं मानेगा। उज्जवल मैं लेके आऊंगा बेटा तेरे लिए, 10 बज गए क्या? अभी है 12 मिनट है। मैंने कल भाई मैं बाहर गया हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था अद्धा इतने का पौवा इतने का, कल ही देखा है मैंने। वो छोटे शहरों में वहां पर वो छोटी दुकानों के बाहर लिखा था ठंडी मिलेगी। ये ले और आया तो बेटा बाहर लिखा था 10 बजे बंद हो जाएगा, तो मुझे क्या पता। हाँ बेटे यही काम है ना मेरा, ये मैंने पढ़ाना तो छोड़ दिया है। और मैं गाना गाता हूँ, तेरे नाम हमने किया है जिंदगी भर का सारा, आगे नहीं आता। सो एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस 90 लाख। अब ऑल इंडिया बेसिस 90 लाख है, मणिपुर की लिमिट 75 लाख है, तो मणिपुर की लिमिट आपकी क्रॉस हो गई। और आना है तो पूरे इंडिया में कॉम्पोजिशन स्कीम में आना है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि मणिपुर में ले लेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम, दिल्ली में नहीं लेंगे। तो हमारी एग्रीगेट ओनर 90 लाख है और मणिपुर की लिमिट ब्रेक हो चुकी है, मणिपुर 75 लाख है। सो योर एग्रीगेट टर्नओवर हैज एक्सीडेड 75 lakhs for the state of Manipur, and hence you will not be eligible for composition scheme in any part of India for 2021. तो since और चक्कर भी लगाता तुम लोगों के लिए लगाता हूँ, तुम लोगों को थोड़ा टॉनिक मिलते रहे, क्योंकि टीचर का क्या है, सब कुछ स्टूडेंट्स का वेलफेयर है। तो उज्जवल जैसे लोग हैं उनको हेल्प चाहिए या किसी और बच्चों को हेल्प चाहिए, तो जो भी मैं करता हूँ नॉलेज इसलिए लेता हूँ, तुम्हारे लिए लेता हूँ, अपने लिए तो मैं कुछ करता ही नहीं दोस्तों, आपको पता ही है। तो सिंस एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड 75 lakhs फॉर द स्टेट ऑफ मणिपुर, therefore he is not eligible for composition scheme for financial year 2021 in any part of India. एक लिमिट टूट गई एक स्टेट की, किसी भी स्टेट पे नहीं आ सकते। तो यानी कि ये 75 तक होता तो चल जाता। तो ये दिल्ली बेस्ड है, मणिपुर बेस्ड है, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज ऑल इंडिया टर्नओवर 75। अच्छा, अगर क्वेश्चन नंबर 4 में, एक सेकेंड, एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 3, सुनना मेरी बात, एज्यूम इन क्वेश्चन नंबर 3 इट इज दिल्ली एंड यूपी। अगर ये दिल्ली और यूपी होता स्टेट्स में इसके बिजनेसेस है तो हाँ, तो एलिजिबल फॉर बोथ दिल्ली एंड यूपी, एलिजिबल फॉर बोथ दिल्ली एंड यूपी, एलिजिबल फॉर बोथ दिल्ली एंड यूपी। तो इज एलिजिबल फॉर बोथ दिल्ली एंड यूपी। तो ये यूपी में भी एलिजिबल है और दिल्ली में भी एलिजिबल है। तो टूटेगा तो सब जगह से टूटेगा नाता, और जुड़ेगा नाता तो हर जगह जुड़ेगा। तो एक भी जगह टूट गई तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बात समझ आई जी? जल्दी बोलिए प्लीज। यस सर। चलिए आइए, ग्रेट ग्रेट। ये मजाक की बातें होती हैं दोस्तों, हम जो भी करते हैं तो उसको प्लीज मजाक के रूप में लीजिएगा, जस्ट टू कीप द क्लास लाइट एंड एंटरटेनिंग। कोई मेरा सीरियस मोटिव, डिस्क्लेमर मैं पहले बता दूं, कोई मेरा सीरियस मोटिव नहीं होता, जस्ट टू कीप द लाइट एंजॉयबल। अदरवाइज तो आप अगर लाइट ना रखें क्लास को तो ना मेरे लिए एंजॉयबल रहेगा ना आपके लिए, तो वो खाली गुड ह्यूमर में होता है, तो डोंट टेक इट पर्सनली प्लीज। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया हमारा और हमारा एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट भी हो गया। इसमें अब और कोई पेचीदगियां, हाँ, अगर इसमें हमने नॉन टैक्सेबल सप्लाईज नहीं ली गाइस, हमने नॉन टैक्सेबल सप्लाईज नहीं ली, यहाँ पर जैसे हमने जितने भी अभी क्वेश्चंस किए इसके अंदर अगर सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी लिखा होता तो वो भी इंक्लूड कर देते। चलो एक क्वेश्चन वो उसका ही बना देते हैं।
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। और आपकी 2021 की टर्नओवर, हाँ 2021 की टर्नओवर, इसमें लिखा है यस माय डियर फ्रेंड 1920, सॉरी 2021 नहीं 1920 जरा लिखें। एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन 1 करोड़, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप पूरा लिखेंगे 30 lakhs, और अदर गुड्स एंड सर्विसेज, अदर गुड्स एंड सर्विसेज मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं 40 lakhs। बताइए, और दिल्ली बेस्ड ही है, क्या ये एलिजिबल है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए? करोड़ या 1 करोड़ है अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। हाँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हाँ जी, सर एलिजिबल नहीं है। नहीं, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई, और ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई है, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, एनटी सप्लाई, और दैट इज 1.7 crores, so not eligible for composition scheme under section 10(1) for financial year, previous year का कॉन्सेप्ट नहीं होता बेटा, प्रायर ईयर मतलब प्रीवियस ईयर मींस इनकम टैक्स वाला प्रीवियस नहीं, इंग्लिश वाला प्रीवियस, लास्ट ईयर, सो फाइनेंशियल ईयर 2021। बोलो जी, ये बात समझ आई? क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया? बोलो अदर जी बताइए। सर ये 40 लाख से पहले क्या लिखा है? अदर गुड्स एंड सर्विसेज, अदर गुड्स एंड सर्विसेज, जरा देखिएगा। तो मैंने जितने क्वेश्चंस करवा दिए इसके कि आपको एग्रीगेट टर्नओवर निकालना आ गया, और इसमें अगर इंपोर्ट लिखा होता एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगा, गुड्स परचेज्ड ऑन रिवर्स चार्ज खरीद नहीं आएगा ना, बिक्री आएगा, और बिक्री रिवर्स वाली हो बिक्री नॉर्मल वाली हो, बिक्री तो बिक्री है, आएगा एग्रीगेट टर्नओवर में। अब करंट ईयर में कॉम्पोजिशन टैक्स कितना लगेगा वो बात अलग है, पहले आप एलिजिबिलिटी तो चेक करो। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपकी सारी सेल्स आ जाएंगी, हिंदुस्तान की हो या विदेश की हो, खरीद नहीं आएगा। इंपोर्ट में भी रिवर्स चार्ज होता है, बाहर से इंपोर्ट करो तो इंपोर्टर पे लायबिलिटी आती है, तो इंपोर्टर हो आप, ऐसे ही खरीद करते हो रिवर्स चार्ज पे, डजंट मैटर, वो क्यों आएगा एग्रीगेट टर्नओवर? टर्नओवर समझो ना, टर्नओवर मतलब सेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूट, आप लोग देखिए कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी। अब मैं मान रहा हूं बंदा कॉम्पोजिशन स्कीम में आएगा, कंप्यूट कॉम्पोजिशन, यस गाइस कंप्यूट कॉम्पोजिशन, यस गाइस कंप्यूट कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर रामलाल फॉर 2021। वैसे तो उसको क्वार्टरली देना होता है, हम तो पूरे साल का पूछ रहे हैं कॉम्पोजिशन टैक्स क्या होगा, ये क्वार्टरली देना होता है। अब इसको डिटेल्स दी हुई है उसकी टर्नओवर की। एज्यूम एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, अगर साल एलिजिबल ही नहीं होता तो लगती कैसे? एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, लास्ट ईयर की टर्नओवर 75 डेट तक होगी, ड्यूरिंग 2021 एलिजिबल कॉम्पो, और है कौन भैया? ये मैन्युफैक्चरर है ऑफ नॉन नोटिफाइड गुड्स, मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेसिफाइड गुड, वो पान मसाला का मैन्युफैक्चरर होता, तंबाकू का मैन्युफैक्चरर होता, MFN, MF शॉर्ट में लिख रहा हूं, MFN मैन्युफैक्चरर। अगर ये और किसी चीज का मैन्युफैक्चरर होता तो इनएलिजिबल होता। तो एज्यूम एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम ड्यूरिंग 2021, ठीक है। सो कंप्यूट कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी ऑफ रामलाल फॉर 2021, मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। अब देखिए जरा, एग्जेम्प्ट गुड्स जो बेचे उसने, हाँ 10 लाख सब पे अच्छा, टैक्सेबल गुड्स का मतलब होता है जिस पर GST है, वो लगा नहीं सकता ना GST,
चाहे एग्जाम बेचे। अब देखना जरा, 40 लाख उसने एग्जाम्प्ट सर्विसेज of extending loans in consideration of interest, ऐसा करो, इसको 50 lakhs कर दो बेटा, consideration of interest of amount 30 lakhs। करोगे खुद एक बार, कितना कॉम्पोजिशन? चलो मैं आपकी हेल्प करवा दूंगा, पहले एक बार क्वेश्चन समझ लो लास्ट ईयर की। अब वो 5 क्वेश्चंस तो एग्रीगेट टर्नओवर लास्ट ईयर की चेक करते थे। तो करंट ईयर में अब आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो। तो पहले तो इस पे जीएसटी का रेट बता दो कौन सा लगेगा, कॉम्पोजिशन टैक्स रेट कौन सा लगेगा? 1% वाला। 1%। और सिर्फ दिल्ली के लिए है। हाँ दिल्ली का है ना, तो रेट तो सेम ही है सभी के लिए, एक बार आ गए तो कॉम्पोजिशन टैक्स रेट for manufacturer is 1%, और 1% यानी कि 0.5% CGST, 0.5% SGST, 0.5% CGST, 0.5% SGST। तो composition tax rate for manufacturer is 1%, 0.5% CG, 0.5% SG। आइए जरा, सो कॉम्पोजिशन टैक्स रेट फॉर मैन्युफैक्चरर 1%, 0.5, 0.5। अच्छा, अब आइए वापस आ जाओ, कॉम्पोजिशन टैक्स की कैलकुलेशन देखो, लास्ट ईयर की औकात चेक करी, अब भुगतान करो, औकात में हो भुगतान करो, भुगतान का रेट देखो, भुगतान का रेट देखो। अब पढ़ो जरा, 0.5% टर्नओवर इन द स्टेट, दिल्ली स्टेट की टर्नओवर। अब एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड नहीं है, एलिजिबिलिटी के लिए एग्रीगेट टर्नओवर था, लेकिन कॉम्पो का टैक्स देने के लिए स्टेट की टर्नओवर देखेंगे। दिल्ली में तो, अगर आप अंडमान में तो यूनियन टेरिटरी की टर्नओवर, और नॉन नोटिफाइड गुड्स नहीं है आपके, तो टर्नओवर इन द स्टेट निकालेंगे। आप जिस स्टेट में कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहे हो उस स्टेट की टर्नओवर। लॉजिक पता है क्या, टर्नओवर इन द स्टेट क्यों देखते हैं? अगर आप दिल्ली में भी कॉम्पो में आए, यूपी में भी कॉम्पो में आए, तो आप एग्रीगेट टर्नओवर क्यों देखेंगे? क्योंकि दिल्ली वाली स्टेट को भी आधा % सीजी, आधा एसजी। यूपी में बेचोगे तो यूपी में कॉम्पोजिशन टैक्स लगाओगे आधा आधा। अगर आप अब एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपने पूरा ले लिया इस साल भी, तो दिल्ली गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, यूपी को कितना मिलेगा? तो एलिजिबिलिटी के लिए एग्रीगेट टर्नओवर है लास्ट ईयर का पूरे इंडिया का, लेकिन जब हम कॉम्पोजिशन टैक्स है, जैसे सब सामान इकट्ठा कर लिया, घर आके तो अलग अलग करोगे ना, ये किचन का सामान है, बिग बाजार गए थे, थैला तो एक ही बना लिया, लेकिन अब किचन का अलग है, वॉशरूम का सामान अलग है, आपके लिविंग रूम का सामान अलग है, केचप है वो अलग अलमारी में जाएगी। तो अब हर स्टेट की टर्नओवर निकालनी है, उस पर आपको आधा आधा % करके देना है। सर करंट ईयर में टर्नओवर इन द स्टेट, क्या सर टर्नओवर इन द स्टेट डिफाइंड है क्या? चेक करते हैं। टर्नओवर इन द स्टेट आपकी, यस, ये 26 थी। टर्नओवर इन द स्टेट, मैं सेक्शन 2 पे जाऊंगा, फिर यहां पर लिखना रह गई, तो टर्नओवर इन द स्टेट हम जाएंगे आपकी सेक्शन 2 पे। चलो पहुंचो भैया, सेक्शन 2 पे जाएंगे, टर्नओवर इन द स्टेट डेफिनेशन। मैंने कहा था ना ये चैप्टर डेफिनेशन वाला, तो वैसे ही जब हम पढ़ेंगे ना बीच बीच में सब चीजें, उसमें आ ही जाएगा। टर्नओवर इन द स्टेट कहां डिफाइंड है भैया? देखना सेक्शन 2 सबसेक्शन 112, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर तो इंडिया का एग्रीगेट करना है, अब हर स्टेट के अलग अलग टर्नओवर निकालो और उस पर जीएसटी दे के आओ 1% वाला। जरा देखो, क्योंकि आप कंबाइन क्यों करेंगे, दिल्ली का अलग होगा, यूपी का अलग होगा, एक ही स्टेट है तो बात ही करता। आइए, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल, हाँ, ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग इनवर्ट सप्लाई और रिवर्स चार्ज, वो तो खरीद है, उस पे क्यों जीएसटी, उस पे क्यों कॉम्पोजिशन लगेगा? एंड एग्जेम्प्ट सप्लाईज, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, एग्जेम्प्ट सप्लाईज विद इन अ स्टेट
और यूनियन टेरिटरी बाय टैक्सेबल पर्सन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज भी लेना है, ठीक है, एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ भी लेना है, इंटरस्टेट सप्लाईज भी लेना है। लेकिन मैं एक बात बताऊंगा अभी, एक्सक्लूड्स, तो क्या फर्क लगा आपको 2112 और 26? क्या फर्क लगा आपको 2116 और 26 के अंदर? सर वो 112 जो है वो पर्टिकुलर स्टेट को ही लेना है और 26 जो है वो ऑल ओवर इंडिया लेना है। दोबारा बोलिए। सर 2112 में तो पर्टिकुलर स्टेट या यूनियन टेरिटरी को लेना है और 26 में ओवरऑल इंडिया में बस चीज सेम है आपको। अपनी एक्सपोर्ट, इंटरस्टेट, लोकल स्टेट, एग्जाम, टैक्सेबल, सब वो एक पर्टिकुलर स्टेट का है, वो इंडिया का एग्रीगेट है, कॉन्सेप्ट सेम है, कोई फर्क नहीं। वहां हमने पूरा इंडिया का इंक्लूड कर लिया था, अब यहाँ पर हमने एक स्टेट का ले लिया, फर्क यही है। बात समझ आई नहीं आई? पहले बताओ जी। Yes, sir. चलो, तो अब इस केस के अंदर हम अपनी हर स्टेट की टर्नओवर अलग निकालेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ही स्टेट दिया हुआ है तो हम ले लेते हैं। तो मेरी स्टेट की टर्नओवर, दिल्ली स्टेट की टर्नओवर ऑफ दिल्ली कितनी निकाली? पहली बात तो ये, टर्नओवर ऑफ दिल्ली बताओ, बताओ जी, टर्नओवर ऑफ दिल्ली बताओ। बताओ। $90 लाख। क्या ये एग्जाम सर्विस नहीं लेना? 60 lakhs। 60? सॉरी 90 lakhs, वो 50 है तो मेरे को 10 लगा एग्जाम्पल वाला। सर ऐसे कौन करता है? 90 lakhs। 90 और ये 30? नहीं आएगा सर। सर ये नहीं आएगा ना। ये तो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आया था ना, या टर्नओवर इन द स्टेट में नहीं आएगा? 80 में तो नहीं आया था? सर 26 और 2112 में आएगा नहीं आएगा? क्वेश्चन ये है ना, 26 की उसमें तो माइनस कर दिया था, लेकिन टर्नओवर इन द स्टेट में भी क्या ये वाली चीज माइनस करनी है? क्वेश्चन ये है। औकात निकालने में तो ये हटा दिया था, लेकिन जिस पे कॉम्पोजिशन टैक्स देना है क्या उसमें आएगा नहीं आएगा? आ जाइए, इसके लिए भी हम थ्योरी को चेक करते हैं, इसके लिए भी हम थ्योरी को चेक करते हैं। टर्नओवर इन द स्टेट, टर्नओवर इन द स्टेट में, एक सेकेंड गाइस, ये आगे लिखा हुआ है, ये रूल्स में लिखी हुई है बात, आराम आराम से आओ। मैंने कहा था बस आज ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, थ्योरी जो रह गई है अगली क्लास में, क्योंकि और थ्योरी भी है इसके अंदर, लेकिन इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। एक सेकेंड गाइस, ये रहा, टर्नओवर इन द स्टेट और टर्नओवर इन द यूनियन टेरिटरी शेल नॉट इंक्लूड, हाँ कुछ एक्सक्लूजन आ गया टर्नओवर इन द स्टेट के लिए भी, सेक्शन में लिखा है, 2112 में नहीं लिखा, ये अभी छोड़ दो, ये नहीं किया। उज्जवल ये नहीं कर रहे बेटा, 1 ना 2, exempt supply of services provided by way of extending deposits, loan and advances insofar as the consideration is represented by way of interest on discount। तो लिए लिख लेंगे भैया, exempt service of loan and advances for interest will not be included neither in AT and neither in turnover in the state, neither in AT and neither in turnover in state, turnover in state ना एग्रीगेट टर्नओवर, तो जिस पे कॉम्पोजिशन टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर कोई और एग्जेम्प्ट सर्विस होती वो ले लेते, तो यहां पर टर्नओवर इन द स्टेट 90 lakhs है। यस माय डियर फ्रेंड्स, और आपको जीएसटी जो देना पड़ेगा, कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी, कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी, yes, composition tax liability, that is 1% ऑफ 90 lakhs। हाँ जी, कितनी हो गई बताओ? 90,000। 90,000। और इसको अगर ब्रेकअप करके दिखाएं तो 0.5% CGST,
और SGST at the rate of 0.5%. बोलो जी, बात समझ आई नहीं आई? बोलो जी। Yes, yes, sir. Yes, sir. चलो, ग्रेट ग्रेट। अगर आप सेम क्वेश्चन है, यस, इसमें एज्यूम करो ये ट्रेडर है, एज्यूम करो ये ट्रेडर है, एज्यूम करो ही इज अ ट्रेडर। अब इसका वही कॉम्पोजिशन टैक्स रेट क्या होगा, बताइए कॉम्पोजिशन टैक्स रेट क्या होगा? 1%. बहुत बढ़िया, कॉम्पोजिशन टैक्स रेट 1%। ठीक है जी। दूसरी बात, टर्नओवर ऑफ दिल्ली कितनी है? 950 भी होगा. नहीं, अब टर्नओवर ऑफ दिल्ली पढ़ो जरा, जिस पे इसको GST देना है वो बदल जाएगी। क्या? बातें नहीं, अपना अपना माइक बंद करिए प्लीज प्लीज। कंपोजिशन टैक्स। एग्जैक्ट सप्लाई इससे खत्म हो जाएगा। अब देखो, जब हम टर्नओवर इन द स्टेट निकालेंगे ट्रेडर के लिए, सरकार ट्रेडर को थोड़ा मेहनत कर रहा, तेरा था एडवांटेज दे रही है, कह रही भाई ट्रेडर अंकल जब आप 1% करोगे तो उसमें एग्जेम्प्ट सर्विसेज भी हटा देना और कोई भी एग्जेम्प्ट हो वो भी हटा देना। क्या मतलब? देखो, फॉर ट्रेडर्स अवेलिंग कॉम्पोजिशन स्कीम 1% टैक्स रेट एप्लीकेबल ऑन टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड टैक्सेबल सर्विस, ऑल एग्जेम्प्ट सर्विसेज, ऑल एग्जेम्प्ट गुड्स हटा देना। Therefore, exempt supplies would not be added in turnover of the state for the purpose of levy of composition levy. यानी कि लास्ट ईयर एग्रीगेट टर्नओवर का कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, करंट ईयर में जो 1% ट्रेडर देगा, ये ला ना, ये टैक्सेबल सप्लाईज का देगा, एग्जेम्प्ट सप्लाईज कोई भी इंक्लूड नहीं करेंगे, कोई भी। हाँ, तो यहां पर भाई इसकी जो टर्नओवर ली जाएगी वो टैक्सेबल वाली ली जाएगी, दैट इज ओनली 40 लैक्स, दैट इज ओनली 40 लैक्स। सो 40 लैक्स का 40,000 रुपए देने पड़ेंगे, इसको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया। CGST एट द रेट ऑफ 0.5% 20,000 एंड SGST एट द रेट 0.5% 20,000। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, जल्दी बताओ। यहाँ पर तो कोई भी एग्जेम्प्ट सप्लाईज लेनी नहीं है, याद रखना लास्ट ईयर का 80 का कॉन्सेप्ट अलग है, करंट ईयर का SAT स्टेट की टर्नओवर का कॉन्सेप्ट अलग है, और उसमें भी ट्रेडर के लिए अलग है, मैन्युफैक्चरर के लिए अलग है। बिल्कुल आराम आराम से करवा रहा हूं तो द कॉन्सेप्ट को पकड़ पाओ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6। अब एक नया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ जी, एलिजिबल हो आप? यस। फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम? यस। इन 2021, ठीक है, आप एलिजिबल हो 2021 में, बात नहीं करता लास्ट ईयर एग्रीगेट टर्नओवर जो भी है इस साल आपकी, और आप मैन्युफैक्चरर हो, ये मैंने लिख दिया। एग्जेम्प्ट, हाँ, एग्जेम्प्ट गुड्स आपने दिए 40 लाख, एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन आपने सप्लाई करी है, लेकिन मैन्युफैक्चरर हो ना, तो उत्पादक हो, तो ये एल्कोहलिक लिकर कहां से आ गई तुम्हारे पास? उत्पादक है ना, आना चाहिए, यू शुड बी अ मैन्युफैक्चरर। तो एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मैन्युफैक्चर करी है, हाँ ठीक है। आपने एग्जेम्प्ट गुड्स बनाए और एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन भी बनाई, 30 लाख। आपने एक्सपोर्ट किए गुड्स 20 लाख, हाँ जी समझिएगा। और आपकी टैक्सेबल गुड्स बेचे, हाँ जी 70 90 90 60 लैक्स के। कब? ये आपके 31 दिसंबर 2020 को ये आपके बिके हैं ऑन
30 जून 2020, ये बिका है 31 अगस्त 2020, मैं डेट भी डाल रहा हूं, और ये एक्सपोर्ट किया है 1 अक्टूबर 2020। पता है क्या होता है, क्वार्टरली देना होता है इनको, क्वार्टरली। तो इनको आपको ना, और एक काम और है, एक टैक्सेबल गुड्स और बेचे हैं 20 लाख के ऑन 1/2/2021। पहले क्वेश्चन समझ आया, पहले क्वेश्चन समझ आया। ये बंदा दिल्ली बेस्ड है, मैन्युफैक्चरर है, और ये कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल है। लास्ट ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रही होगी, लाजमी है। करंट ईयर मैन्युफैक्चरर है तो कम से कम सब इकट्ठा कर देंगे। अगर सब ट्रेडर होता तो खाली हम टैक्सेबल लेते, फिर हम इसमें ये एक्सक्लूड कर देते ना, एग्जेम्प्ट में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एक्सक्लूड कर देते, ये भी एक्सक्लूड कर देते। एक्सपोर्ट को एग्जेम्प्ट नहीं कहते, एक्सपोर्ट को एग्जेम्प्ट नहीं कहते, जीरो रेटेड कहते हैं, वो आ जाता। बोलो बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी बोलो। ये लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। बच्चों पहले एक बार बताओ, देखो जी मैं तो थकूंगा नहीं, आपको बताना पड़ेगा। सर ये सर हाँ हाँ बोलो। आपके हर की क्वार्टरली बेस करेंगे तो फिर पहले के 3 मंथ करेंगे। हाँ हाँ वो तो अभी बता दूंगा। नहीं क्वेश्चन समझ आए नहीं आए वो छोड़ दो, आंसर सॉल्यूशन छोड़ दो, क्वेश्चन समझ आए नहीं आए। हाँ अब आ जाओ। आई थिंक दिस विल बी द वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चंस, क्योंकि ज्यादा मैं स्ट्रेस नहीं करना चाहता। आइए सर, अब इसमें कॉम्पोजिशन जो लायबिलिटी निकाली जाएगी, कॉम्पोजिशन टैक्स लायबिलिटी जो निकाली जाएगी वो क्वार्टरली होती है। हम पहले अप्रैल मई जून की स्टेट की टर्नओवर निकालेंगे। अच्छा, स्टेट टर्नओवर मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूं, अप्रैल टू जून 20 वो होगी आपकी 40 लाख। उसका हमें, अब मैं 1% सीधा लिख देता हूं, बात करता हूं, वो आधा आधा करके आप दिखा देना। और ये जमा पता है कब तक होगा, अप टू डिपॉजिट जो करवाना है 18 जुलाई 20। अच्छा, जो आपने कॉम्पोजिशन टैक्स निकाला क्वार्टर का, स्टेट की टर्नओवर 18 जुलाई 2020 तक जमा करवाना है। जनरली अप्रैल का 20 मई तक, मई का 20 जून तक नॉर्मल टैक्स होता है, को मंथली होता है नॉर्मल टैक्स, 20 तारीख होता है नेक्स्ट मंथ, इनको 18 तक। अच्छा, जुलाई से सितंबर 20 का, हाँ जी बच्चों, ये आपका हो गया अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये जुलाई अगस्त सितंबर यहां तक आ गया ना, 30 लाख। इस पे भी देना पड़ेगा आपको एट द रेट ऑफ 1%, और इसका डिपॉजिट होगा अप टू 18 अक्टूबर 20। बोलो यहां तक समझ आ रहा है? Yes, sir. यस चलो सर चलो नेक्स्ट Yes, sir. जी, थैंक यू जी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर की टर्नओवर 80 का, यस, सो अक्टूबर टू दिसंबर 20 80 लैक्स का एट द रेट ऑफ 1% अप टू 18 जनवरी 21। आपकी अभी तक वैसे एग्रीगेट टर्नओवर कितनी हो गई इंडिया की? 80, इस साल की 80 कितनी हो गई वैसे? 1.5. अब आपको कॉम्पोजिशन, हाँ अब सुनो, इस साल आप कॉम्पोजिशन स्कीम खत्म आपकी, बस। तो टर्नओवर इन द स्टेट पे देते रहना, और अपनी साथ साथ एग्रीगेट टर्नओवर भी निकालते रहना। जैसे टर्नओवर इन द स्टेट, TAS, टर्नओवर इन द स्टेट, टर्नओवर TIS कह लो, टर्नओवर इन द स्टेट 80। पहले टर्नओवर इन द स्टेट 40 लैक्स, एग्रीगेट टर्नओवर इंडिया की 40, फिर 30 लैक्स, एग्रीगेट टर्नओवर 70 लैक्स, फिर 80 लैक्स। ऐसे ऐसे हम राइट वाला कॉलम भी रखते अपने साथ, 150 लैक्स कॉम्पोजिशन स्कीम से आउट। तो लास्ट ईयर 1.5 करोड़ तक थी 80, तो करंट ईयर में 1.5 करोड़ तक 80 में आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मिलेगी। यानी कि जो आपका ये 1 फरवरी को माल बिका है, इसमें नॉर्मल GST लगेगा। ये जो आपका 1 फरवरी को माल बिका है, अब क्वार्टरली खत्म, मंथली पे आ जाओ। 1 फरवरी 21 को माल बेचा है, नो कॉम्पोजिशन स्कीम, नो कॉम्पोजिशन स्कीम, क्योंकि आपकी एग्रीगेट टर्नओवर यहां पर एक्सीड कर गए 1.5 करोड़। हाँ, अब इसको 20 लाख पर आप
प्लीज नॉर्मल जीएसटी लगाइए। हाँ, नॉर्मल जीएसटी, और इसका डिपॉजिट अगले महीने की 20 तारीख तक, यस, डिपॉजिट नॉर्मल जीएसटी जो भी है अप टू 20 मार्च 21, यानी कि लास्ट ईयर 1.5 करोड़ तक था। करंट ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 1.5 करोड़ से एक्सीड कर गई, तो जिस दिन एक्सीड कर गई उसके बाद से आपको कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं मिलेगा, और अगले साल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इस साल की एग्रीगेट टर्नओवर आपकी 80 प्लस 80 के साथ हम ये 20 लाख जोड़ दें, ये 1.7 करोड़ हो गई। जैसे आपने 20 लाख जोड़ा टैक्सेबल टर्नओवर के साथ, तो 80 हो गई 1.7 करोड़। तो इस साल तो आउट हो ही गए, अगले साल के लिए भी आउट हो गए। ये बात समझ आई या नहीं आई? नई बात हमने सीखी। तो लास्ट ईयर सर ये दोबारा बोलो। सर ये 18th डेट जो है यहाँ पर हमने 18 क्वार्टरली और फिर 20th मंथली। हाँ, क्योंकि नॉर्मल स्कीम में टैक्स मंथली होता है, तो ये जो नॉर्मल स्कीम में हाँ क्वार्टरली होता है, 18th होता है नेक्स्ट क्वार्टर, मंथली होता है 20th होता है नेक्स्ट मंथ। क्योंकि ये टर्नओवर आपकी फरवरी की है ना, तो इसका जीएसटी जमा होगा 20 मार्च तक। तो नॉर्मली क्या होता है, अप्रैल का 20 मई, मई का 20 जून, जून का 20 जुलाई, हर महीने की अगली तारीख तक 20 तक होता है नॉर्मल स्कीम में जीएसटी। लेकिन कॉम्पो में मंथली की जगह क्वार्टरली और अगले महीना 18th। ये बात समझ आई नहीं आई? यस सर। सर ये जो लास्ट वाला है, हाँ, जनवरी टू मार्च वाला, जनवरी टू मार्च अब हैगा ही नहीं अब ना, अब मंथली पे आ गए। अब आप आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम खाली दिसंबर एंड तक थी, क्योंकि अब क्वार्टरली खत्म, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम जब तक मिलेगी जब तक आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक नहीं है। तो लास्ट ईयर भी 1.5 करोड़ तक हो, करंट ईयर में भी 1.5 करोड़ तक हो। जैसे 1.5 करोड़ से एक्सीड कर गई आपकी 1 जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स नॉर्मल स्कीम में आ गए। नॉर्मल स्कीम, लेकिन आपने जनवरी में कोई सेल नहीं करी, फरवरी में करी, तो फरवरी के नॉर्मल सेल पे नॉर्मल जीएसटी लगाना, आईटीसी भी मिलेगा, और फिर रिमेनिंग टैक्स जो भी आईटीसी लेने के बाद 20 मार्च तक जमा करना। सर प्रीवियस ईयर में हम क्योंकि से जो 2021-22 को उसमें नहीं मिलेगी ना, क्योंकि आपकी करंट ईयर की 80 170 हो गई ना, अब तो वो इंडिपेंडेंट ईयर है ना। अब अगर आप 20-21 के बाद 21-22 में कॉम्पोजिशन बनाना चाहते हो, उसके लिए 80 निकालोगे 20-21 की, और 80 आपके सामने है, 20-21 में तो क्रॉस हो चुकी 1.5 करोड़। ओके सर। तो इसमें आपने ये सीखा कि लास्ट ईयर की टर्नओवर, यस, लास्ट ईयर की टर्नओवर, हाँ, अगर ये एग्जेम्प्ट सर्विसेज होती, मान लो ये टैक्सेबल, ये कहां गए, एग्जेम्प्ट गुड्स की जगह एग्जेम्प्ट सर्विस कर देता मैं इसको, तो अगर मैं एग्जेम्प्ट गुड्स की जगह एग्जेम्प्ट सर्विस कर देता तो 20 लाख की, चलो लास्ट क्वेश्चन, अगर एग्जेम्प्ट गुड्स को एक्सपोर्ट गुड्स की जगह ये मैं एग्जेम्प्ट सर्विसेज ऑफ वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन डिपॉजिट कर देता, तो ये 20 लाख को मैं अगर एग्जेम्प्ट सर्विस ऑफ लोन एडवांस कर देता, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। तो सर नॉर्मल क्या कर दूं? तो टर्नओवर इन द स्टेट, तो हम ये 20 लाख रुपए इंक्लूड नहीं करते इधर ना, 80 में इंक्लूड करते 20 लाख ना, इसको टर्नओवर इन द स्टेट टीआईएस में इंक्लूड करते, तो इसकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 रहती, और पूरे के पूरे 1.5 पर कॉम्पोजिशन टैक्स दे देता, कोई टेंशन नहीं थी, अगले साल फिर कॉम्पोजिशन मिल जाती। तो बांग तोड़ना नहीं है 1.5 करोड़ का, लेकिन 1.5 करोड़ की लिमिट में, या यस, स्टेट की टर्नओवर लिमिट निकालने में या टर्नओवर इन द स्टेट निकालने में एक चीज एक्सक्लूड करनी है। अभी तक ये पढ़ा है, जो एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन। बोलो बात क्लियर हुई नहीं हुई? यस सर। चलो, तो हम आज इतना ही करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे जो हमने आज किया। So guys, we started today with the composition tax scheme, which is an alternative manner of paying GST, in which for certain states the limit, Mantri Meena and Musa states, Mantri Meena and Musa states, Baba, the limit is 75 lakhs. Here we have done it where it is, yes,
and for other state it is 1.5 crores. For last year we see the aggregate turnover which excludes only one exempt service. For current year we include turnover in the state which also excludes exempt service of loans. But if you are a trader, then in the current financial year, we only see taxable goods and taxable services. We will not see any exempt services, any exempt goods for turnover in the state for a trader. प्लीज आप इन्हीं एग्जाम्पल्स को दोबारा करेंगे और आपको कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. इसी में से क्वेश्चन अगर आएगा तो इसी में से आएगा. बाहर पूछने की औकात किसी की नहीं है इससे बाहर, क्योंकि ये मैक्सिमम हो सकता है जो मैंने आपको करवाया. इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में कॉम्पोजिशन टैक्स स्कीम को खत्म करेंगे. टाइम बचा तो आपका जो लास्ट मेजर प्रैक्टिकल चैप्टर, 2 चैप्टर रहेगा, प्रैक्टिकल, रजिस्ट्रेशन और एग्जाम सर्विसेज. उसके बाद मैंने बोला आपको क्वेश्चन बैंक अपना खत्म करना है और एक नया क्वेश्चन बैंक जहां पर मुझे 3-4 घंटे मिले वही फिनिश करके मैं वो आपको सॉफ्ट कॉपी भिजवा दूंगा. बात समझ आ रही है जी? बढ़े आगे अब. सर जी बोलिए. सर मुझे ये पूछना था जो आपने बताया अभी कि एक्सपोर्ट सप्लाईज अगर होगा तो 20 लाख नहीं. एक्सपोर्ट नहीं, इसको एग्जेम्प्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज मान लें. अगर हम लास्ट वाले क्वेश्चन में इस 20 लाख को या इस टैक्सेबल गुड्स या इसको 20 लाख को एग्जेम्प्ट सर्विसेज ऑफ लोन एडवांस मान लें, तो ये 20 लाख रुपए को हम एग्जेम्प्ट सर्विसेज ऑफ लोन एडवांस मान लें, तो ये तो ना 80 में इंक्लूड करेंगे ना TIS में इंक्लूड करेंगे. तो ये मान ले है ही नहीं. ये मान लो ना अगर ये 20 लाख रुपए एग्जेम्प्ट सर्विस है, एक्सपोर्ट नहीं एग्जेम्प्ट सर्विस है, तो हम इसको एक्सक्लूड ही नहीं करेंगे. अच्छा एक चीज गलती भी हो गई हमसे यहाँ पर, एक चीज हमारी गलती भी हो गई यहाँ पर. इनफैक्ट मुझे बता देना चाहिए था. आगे का टॉपिक है ये एक्सपोर्ट टर्नओवर करते ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर हो गए. ये मैं बताना भूल गया आप, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं, चलो अच्छा अमेंडमेंट अभी हो गई, दिमाग में आ गई बात. जो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम में आ जाते हैं वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते. ये बात बताना रह गई आपको, क्योंकि हम पीस मील में क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा था. अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं तब कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते. तो आपने जैसे इंटर स्टेट सप्लाई करी आपका कॉम्पोजिशन टैक्स खत्म हो गया. ये बात क्योंकि वो पीस मील बता रहा था, दिमाग से वो बात मेरी भी निकल गई. तो यहाँ पर एक पॉइंट बता दूं कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं तो आप इंटर स्टेट, ये रहा ना, नॉट इंगेज इन मेकिंग इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाईज, और एक्सपोर्ट आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट. एक्सपोर्ट्स आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट. एक्सपोर्ट्स आर ट्रीटेड एज इंटरस्टेट, है ना. ये हमने शायद प्लेस ऑफ सप्लाई लास्ट क्लास में ही पढ़ा था कि एक्सपोर्ट को इंटरस्टेट माना जाता है. तो जैसे ही आपने एक्सपोर्ट कर दिया वैसे ही आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ गए. इनफैक्ट आपको कॉम्पोजिशन स्कीम मात्र जुलाई अगस्त सितंबर तक मिलेगी. अब आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर में यहां पर कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते. हाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में पहले एक्सपोर्ट कराए या पहले टैक्सेबल गुड्स हैं पहले एक्सपोर्ट कर दिया तो ये आपको, हाँ इस पे तो GST लगेगा नहीं, और टैक्सेबल गुड्स 60 लाख के दिसंबर में बेचे इस पे भी नॉर्मल GST लगेगा. अच्छा हुआ ये बात हमें पहले ही समझ आ गई. तो यहां पर हम लिखेंगे, एक बात करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, करेक्शन कर लीजिएगा. अब यहां पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सिंस interstate supply has taken place, interstate supply has taken place out of composition scheme, out of composition scheme. अच्छा हुआ ये बात समझ आ गई आपको, क्योंकि वो पीस व्हील में करवा रहा था, पूरे प्रोविजन पढ़ाए नहीं, अभी स्लोली कर रहे थे. चलिए, तो इट इज आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम. और इसमें 20 लाख जो एक्सपोर्ट किया है ये तो जीरो रेटेड होते हैं, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड होते हैं, इस पे GST लगाना नहीं है. तो इस 20 लाख का जो एक्सपोर्ट है इट इज जीरो रेटेड, नो GST. लेकिन जो 60 लैक्स है, हाँ इस पे GST लगेगा और ये डिपॉजिट होगा. हाँ, ये कब आपने 60 लाख की टर्नओवर करी है बच्चों? 31/12. बताओ इसका GST कब तक जमा होगा? एक सेकेंड बेटा, नॉर्मल GST लगेगा कब तक जमा होगा? 20th जनवरी. 20th
जनवरी 2021। 21। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने इंटरस्टेट सप्लाई करी, अब आपका कॉम्पोजिशन स्कीम में आप आओगे नहीं, आउट ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम। और ऑब्वियसली 1 फरवरी को तो वैसी कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं होनी है, तो पहले ही टूट गया। 20 लाख जीरो डेटेड आएंगे, नो जीएसटी लगाना, 60 लाख पे नॉर्मल जीएसटी लगाना और डिपॉजिट करवा देना। अच्छा, वो ये पॉइंट भी हमने यहाँ पर देख लिया, कंफ्यूजन नहीं है। बोलो, बात समझ आ गई? यस सर। हाँ जी, क्लियर है बात? ठीक है, तो अब इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट क्लास में एक नए सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, इसी कॉम्पोजिशन स्कीम को समाप्त करेंगे। और हमें अगर प्रभु ने टाइम दिया एक्स्ट्रा का करने का, तो इसी वीक की एक्स्ट्रा क्लासेस लगा रहा हूँ खाली फ्राइडे तक। नेक्स्ट वीक वी विल रिवर्ट बैक टू द नॉर्मल कॉन्सेप्ट, बिकॉज दिस वीक सम एक्स्ट्रा क्लासेस हैव बीन स्टार्टेड इन द मॉर्निंग। मुझे फिर वो सुबह 7 बजे उठना है अपना, 7 साढ़े 7। तो अब वैसे तो क्या 10:30 हो गए हैं रात के, थोड़ा सा भाई नींद भी चाहिए। तो गाइस, बिल्कुल क्लियर है बात? कॉम्पोजिशन स्कीम में बस इन्हीं क्वेश्चंस को करना है और कुछ ज्यादा आपको नहीं करना। थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिटेन करने के लिए समरी बना लेना, सो दैट आपको याद रहे। लास्ट ईयर भी एग्रीगेट टर्नओवर देखनी है, करंट ईयर की एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर चली जाए। लेकिन यहाँ तो पहले एक्सपोर्ट कर दिया, तो टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर नहीं थी, पहले भी आपका समाप्त हो गया, बिकॉज आपने इंटरसेट सप्लाई कर दी। और इंटरसेट का मतलब ये नहीं कि एक सेट से दूसरे सेट, इंटरनेशनल सेल भी कर दी, हम आपको कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकाल देंगे। क्लियर है बच्चों? चलो बच्चों, टेक केयर।